Right, so I should begin with the paper analysis of this year, 2020 JEE Advanced. And how does a paper look like? As I've gathered the information from all the sources I could. So the paper, as you know, is always split into two parts, of paper one and paper two. And there is something new in the pattern, not exactly new in the pattern. There is little bit new in the marking scheme which has been there. And some kind of questions has been eliminated. So it's nothing like कि कुछ बहुत ज़्यादा drastic कर दिया IIT ने. They have been experimenting with the different form of patterns to keep on students being guessing about that what the paper would like be. And this time also they have left us with a slightly kind of a new pattern where they have completely not touched the area of the matrix match. So matrix match article is not there. The matrix match article is completely not there. So I am just mentioning it over here. Matrix match is not there over there. Column based questions are not based over there. That does not mean that you will stop preparing about these particular questions. Reason because next time Mera IIT once again venture into this area and once again prop out the questions from there, right? So we must not be getting fascinated about this idea that matrix match nahi aaya, chalo halla kare aur ye questions hum practice nahi karenge, right? So what is the key? और एक और बात कि comprehension kind of questions नहीं आए हैं, मतलब passage based questions जो है वो नहीं आए हैं. और जो क्वेश्चंस जो आप अभी रिसेंट एडवांस पेपर्स मेरे साथ भी लिख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम भी उस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा एंडोर्स नहीं कर रहे हैं. ये तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ट्रेंड अप हमने देखा है लास्ट के 6-7 ईयर्स में, जहाँ पे आईआईटीज ने पैसेज काइंड ऑफ क्वेश्चन से अपना थोड़ा हाथ खींचा है. और उसका रीज़न जो मेरे को समझ में आता है वो ये आता है कि एक्चुअली स्टूडेंट को एडवांटेज मिल जाता है कि एक क्वेश्चन हो गया तो दूसरा क्वेश्चन उसके साथ का शायद हो जाएगा. तो क्वेश्चन की मल्टीपल स्टूडेंट की मल्टीपल नॉलेज टेस्टिंग शायद हैम्पर हो जाती है. और नंबर ऑफ क्वेश्चन को कि 18 है तो शायद फिर अगर पैसेज क्वेश्चन में वो डिसएडवांटेज है एक्सट्रीम टॉपिक से क्वेश्चन को पूछने के लिए. तो मेरा शायद ये एनालिसिस है कि इस वजह से शायद आईआईटी एडवांस में पैसेज क्वेश्चंस शायद अगले साल भी टच ना करें. बट आई कैन नॉट गिव श्योरिटी. इट इज जस्ट अबाउट कि कौन सी आईडी पेपर बना रही है और वो किस तरीके से करिए. तो आपको पता ही है इस साल का कि कौन सी आईडी पेपर पुट अप करेगी नेक्स्ट ईयर. आई थिंक यू नो दैट, है ना. इस साल का भी आपको शायद पता है और अगले साल का भी पता है. नाउ कमिंग आउट टू द पेपर पैटर्न ओवर देयर और मार्क्स. सो मार्क्स वाज 66 per subject. That is 66 per subject was a mark scheduling, and that will make I think 198 marks paper. That is 198 marks, ma'am. Please let me discuss. That is 198 marks paper over here, right? And similarly the paper 2. And the paper pattern, of course, there are single option question, single choice questions, and the single choice questions are 6 in number. Of course, I've divided it 666. So single choice question 6 in number, and the marking scheme is +3 -1. So nothing much of an ado over there. And but there is a change in the multiple choice question. The multiple choice question. In the case of the multiple choice question, they have surprised us. एक बार पहले भी आईआईटी ने सरप्राइज करा था जहाँ पे उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम रखी थी +5 -2. This time they have kept it +4 -2. Right, that is +4 -2. That is what a multiple choice question marking scheme they have kept upon over there. So that's a little bit of challenge thrown to you that please attempt it. And if you attempt it, then if you do something wrong, then you lose -2 marks. So that's something new they have done over there. And then we have the numerical type questions. Numerical type questions, and there are again 6 number 666 in the format over there. And that's supposed to be +4 and 0, so you can play your luck over there. And but options nahi hoti hain, so you have to fill in your answers. And these are numerical, means they are not integer type exactly, so there can be hell lot of thing which you have to put in over there. So I think you cannot enjoy your luck over there. And so what happens in the paper 2? What happens in the paper 2? This keeps a space like this only, exactly like this. This keeps it pace exactly like this. पहले क्या होता था कि वहां पे शायद मैट्रिक्स मैच आने की या पैसेज टाइप आने की संभावना होती थी, वो उन्होंने गायब कर दी. हो सकता है इंटरवल में 2 घंटे में बच्चों ने सोचा होगा चलो यार अब तो मैट्रिक्स मैच आएगा, पर उन्होंने उड़ा दिया वो सारा उनको. और जो बाकी के 6 क्वेश्चन है वहां पे उन्होंने फिर से एक सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा सा डाल दिया.
ऐसा कुछ नहीं कि आप जो प्रिपेयर नहीं कर रहे। दीज आर इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल, दीज आर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। बस फर्क ये है कि जो न्यूमेरिकल वाले हैं उसके अंदर आपको गेस अप ही करना पड़ेगा कि आंसर क्या, आपको सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। और इंटीजर टाइप आपको पता है नियरेस्ट इंटीजर पे मार्किंग करना है। सो क्योंकि उनको लगता है कि इंटीजर टाइप कंपैरेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और सो वो भी शायद सिंगल डिजिट इंटीजर पे क्वेश्चन थे, सिंगल डिजिट इंटीजर पे। सो हेंस दे हैव केप्ट दिस एज +3 -1। सो यू गॉट इट राइट माय डियर। सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन दैट आल्सो। तो ये तो हम अपने पेपर्स में करते आए हैं, आपको ध्यान होगा मैंने हमेशा इस बात को बोला था कि इंटीजर टाइप में नेगेटिव बननी चाहिए, और हम पेपर्स में अपने रखते आए हैं और ये अभी भी यहाँ पे रहा है। राइट, सो दैट्स द पेपर पैटर्न बेसिकली व्हिच हैज कम अक्रॉस यू। और आपके टाइम पे जब आप पेपर लिखेंगे सो हो सकता है तब भी थोड़े चेंजेस आए इसमें। सो चलो हम बात करते हैं आगे की फिजिक्स के पेपर की रिव्यू की। बाकी टॉपिक्स के मैं ज़्यादा एलैबोरेट रिव्यू नहीं दूंगा। जो मुझे पता चला है कि जो फिजिक्स एंड मैथ्स का पेपर जो बच्चों ने बोला वो हमेशा जैसे बोलते हैं वैसे ही बोला, इस रिगार्डिंग अ लिटिल टफ एंड लिटिल लेंदी लाइक दैट। सो वो आप अपने टीचर से रिव्यू करा लेना। एंड सेम अबाउट द केमिस्ट्री, दे वर टेलिंग इट्स अबाउट मॉडरेट एंड ऑल, आप चेक कर सकते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स ओवर देयर। तो फिजिक्स पेपर रिव्यू, व्हाट इट इज। So as I said, it's lengthy. It's lengthy, they have said, and they have said that it is tough, they have said, and they are telling it's tricky. So मुझे new adjectives, new यहाँ से कुछ मिला नहीं, ये हर साल ही मिलता है। और कुछ कहते हैं फ्रेश है तो IITs की स्टैंपिंग है कि फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कहते हैं न्यू है तो वो तो स्टैंपिंग है कि न्यू होती है। सो ओवरऑल ऐसे रिव्यू करके कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ, पर ठीक है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स जब कहते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। सो फ्रेश क्वेश्चंस हमें पता है, हम आपको फीड करते रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है आईआईटीज के अंदर कि हमेशा वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जैसे आपने करा हुआ होता है। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट द रिगरस प्रिपरेशन ऑफ द आईआईटी इज बेसिकली, कि आपको लगे रहना पड़ता है और कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ता है ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको फील हो कि यस दिस कैन बी सॉल्व्ड वाया दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो लेट्स फेस द क्वेश्चनर व्हिच हैज बीन कमिंग, जो मुझे क्वेश्चंस हाथ में लगे हैं इधर उधर से सोर्सेस से। सो लेट मी चेक अपॉन द क्वेश्चंस विद यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, मैं उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट देखता हूं कि ये किस एरिया ऑफ द फिजिक्स से एंटर इन करा है। सो आई विल प्रेफरेबली ट्राई टू से दैट दिस इज बाय एंटरिंग फ्रॉम द रोटेशनल मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया है ये, रोटेशनल मैकेनिक्स। आई हैव ऑलवेज बीन हिंटिंग यू कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है एडवांस में जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो रोटेशनल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है क्या, देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, उसमें एक स्फीयर फंस गया, आपको दिख रहा होगा, तेरी स्फीयर फंस गया बेचारा इस इंक्लाइन प्लेन में। मैं यहाँ पे आपको कुछ शेड करके दिखाता हूँ लाइक दिस, और ये थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया बेचारा, और ये निकलने की उम्मीद में शायद हो, और हमें उसकी उम्मीद को नाकाम करना है। वी हैव टू स्टॉप दैट दिस मस्ट रोल डाउन। The question is not too much roll down, and students might get confused कि सर rolling का question है। Actually question को अगर आप ध्यान से सुने, so it is the maximum value for the inclined plane angle such that the sphere does not roll down पूछा है, rolling करवानी नहीं है, rolling का question नहीं है। So what's the concept behind this particular question? That is basically tipping. That's a tipping or the toppling. So ये आर्टिकल आपका टॉपलिंग का है जहां पे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा जाता है, और एग्जैक्टली अगर मैं हिट करूं तो दिस इज एन आर्टिकल ऑफ द टॉपलिंग। और टॉपलिंग के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो आपको टॉपलिंग डायग्राम बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टॉपलिंग डायग्राम बनाना पड़ता है। ये टॉपलिंग डायग्राम क्या होता है, जब जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो कहां से पास करती है, एग्जैक्टली उस टिपिंग एज टॉपलिंग एज से पास करती है। उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सपोज्ड टू बी द टॉपलिंग डायग्राम, राइट। सो आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन द क्वेश्चन वेरी इजीली। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो mg फोर्स जो होती है, जो ग्रेविटी फोर्स होती है, that's going to act from the center of the gravity over there, this is mg, right। तो mg क्या करती है कि इसको बचा रही है। अगर आप इसको अबाउट दिस एज देखोगे तो आपको लगेगा कि mg जो है वो उसको बचा रही है रुकने से या उसको रोल कराएगी। सो आइडिया हमने क्या करना है सिंपल क्वेश्चन में, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में जो डायमेंशंस गिवन है, कैपिटल आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, ओके। और जो टू स्मॉल आर आपको दिख रहा है वो इस समय पे वो लेंथ अलोंग द इंक्लाइन आ रही है, जो टू स्मॉल आर गिवन है जहां पे वो फंसा हुआ है। तो अगर वो थोड़ा सा उठेगा तो वो टू स्मॉल आर थोड़ा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज। हमने इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन की जो अप्रोच है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्योंकि हमें क्लियर हो गया,
तो हम एक टॉपिंग डायग्राम बनाएंगे। और टॉपलिंग डायग्राम क्या होता है सुन लीजिए। टॉपलिंग डायग्राम में क्या करना है आपने कि जो mg फोर्स आ रही है जो कि अभी इस पॉइंट से पास नहीं कर रही थी, ये जो है इसको मैं टिपिंग पॉइंट बोल देता हूँ, दैट इज अ टिपिंग पॉइंट, जिसके अबाउट ये टिप करेगा जब रोल करने से पहले टिप करेगा। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन उस टिपिंग पॉइंट से पास करना चाहिए। दैट्स द बेसिक क्वेश्चन, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। तो mg जो है जो यहाँ से लग रही है वो उस पर्टिकुलर टिपिंग पॉइंट से पास करनी चाहिए। सो दैट मस्ट बी द आइडिया। तो हम उसको रिस्पेक्ट में करते हुए डायग्राम को क्रिएटिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो टिपिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट को पी लिख देता हूँ तो वो पी पॉइंट इस जगह पे पहुंच गया है। इसका मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है वो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टिंग कर सकते हैं। सो दैट्स एन आइडिया, दैट्स एन आइडिया ऑफ द टिपिंग डायग्राम ओवर देयर, दैट्स अ टिपिंग पॉइंट ओवर देयर। और एमजी उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करिए। आई थिंक द क्वेश्चन इज डन फ्रॉम देयर। वहां से क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है। आपको थीटा निकालना है, थीटा मैक्स। तो थीटा मैक्स को मैं थीटा नॉट लिख देता हूँ और थोड़ी ज्योमेट्री लगा लेते हैं। तो ज्योमेट्री लगा के क्वेश्चन डन है। ये देखो ये वाली साइड जो है ये स्मॉल आर है, ये वाली आपकी कैपिटल आर है और थीटा नॉट। सो आई थिंक ये तो बड़े आराम से आप चेक कर लोगे कि ये एंगल थीटा नॉट है और ये वाला जो एंगल है ये थीटा नॉट आ जाएगा। और एक छोटे से ट्राइंगल से बहुत ही क्लियरली द वैल्यू फॉर द साइन थीटा नॉट बिकम्स इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। सो थीटा नॉट बिकम्स इक्वल टू साइन इनवर्स स्मॉल आर बाय कैपिटल आर is supposed to be the question solved and done. So कितना समय लगा होगा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में? अगर आप सीधा मेरी तरह क्वेश्चन के टॉपिक को हिट कर जाते, कंफ्यूज नहीं होते कि रोलिंग का क्वेश्चन है, टिपिंग का क्वेश्चन है, तो आई थिंक द सॉल्विंग रिक्वायर्स अ मिनट एंड सो माय ओपिनियन रिगार्डिंग दैट टाइम इज दैट इज विद इन द टाइम फ्रेम क्वेश्चन। सो विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन है और आराम से आप कर सकते हैं। 1 घंटे का पेपर है, 18 क्वेश्चन अगर आपने करने हैं फिजिक्स के। सो रफली 3 मिनट्स तो आपको मिनिमम एक क्वेश्चन में मिल ही जाते हैं। सो मिनिमम टाइम फ्रेम का क्वेश्चन है, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में मैक्सिमम आप इसको सोच के खत्म कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन लेवल इज मीडियम, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो रोटेशन मैकेनिक्स को करते हैं तो उसके अंदर वो टिपिंग वाली प्रॉब्लम्स को एंड में देखते हैं। तो इस वजह से मैं इसको मीडियम लेवल क्वेश्चन बोलूंगा, बहुत हार्ड टफ नट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन देखते हैं कि पहले है क्या और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे मूव ऑन कर जाते हैं, राइट। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हटा देता हूं मैं। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन इज लाइक गोज लाइक दिस कि 2 स्टेप थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बोला हुआ था कि जहां पे जो प्रेशर है पहले दैट वाज गिवन एज P1 एंड V1, दैट वाज सपोज्ड टू बी द इनिशियल प्रेशर ओवर देयर, P1 एंड V1। एंड देन द गैस, और गैस की भी हमें डेमार्केशन गिवन है। It's a 1 mole of helium gas which has been given. So यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने के तरीके जो मैंने बताए हुए हैं कि हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। और मोनोएटॉमिक गैस की CV, CP, गामा के लिए हमने एक टेबल बनाई होती है, वो टेबल आपके दिमाग में इमीडिएट क्लिक करनी चाहिए, राइट। वो शायद यहाँ पे यूज होगी बिकॉज द क्वेश्चन फॉर्मेट्स लाइक दिस कि प्रेशर इनिशियली P1 V1 है, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ और उस वजह से क्या हुआ, जो प्रेशर है उसमें चेंजेस आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। क्वेश्चन ने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो P2 की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हाइड इन करी। क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो वॉल्यूम की दी कि वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गया है, दिस इज व्हाट द इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि दिस प्रोसेस इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस। किस तरीके का प्रोसेस है? एक्सपेंशन प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल है और वी विल ऐड कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया है, वेरी गुड। वहां पे क्वेश्चन रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है और क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट स्टेज पे अब एडियाबैटिक प्रोसेस कराया जाता है। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उससे क्या होता है, फिर से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होकर 32 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब जो V1 था 32 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाता है। प्रेशर की बात को वो फिर से हाइड इन कर गया, इट्स नॉट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेशर, सो इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम रूल्स द this particular question. And what is the demand of the question is calculate the ratio of the work W1 upon W2. पहले प्रोसेस में जितना वर्क हुआ उसको W1 का स्टेटस दे दिया हमने और सेकेंड में जितना हुआ उसको W2 का स्टेटस दिया, तो आपको इसका वर्क निकालना है। आई थिंक ये क्वेश्चन देखते ही बच्चों के मुंह पे स्माइल आ जाती है और उनको लगता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन है ये, फर्स्ट लॉ थर्मो के, और इसके अंदर आप 3 चीजों पे अपना दिमाग लगाते हैं, हीट एक्सचेंज, डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W। सो ये उस प्रकार का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूरा फर्स्ट लॉ भी यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्क बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सो आई थिंक देयर मस्ट बी अ स्माइल while doing this particular question. And what's the question concept? Already I've said to you, this is just a portion of the first law, that's a work performed. और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में मैं जाऊं तो पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए
कि वर्क डन का साइन क्या होगा। दोनों प्रोसेस एक्सपेंशन है, दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसके जो भी वर्क डन है वो एक तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सो वर्क डन के साइंस को आप चेक कर लेना, राइट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक तो वो। और दूसरा कि आइसोथर्मल में किस तरीके से वर्क डन आता है और एडियाबैटिक में किस तरीके से आता है। दिस इज व्हाट द एंटायर क्वेश्चन इज, इट्स जस्ट अ पोर्शन ऑफ द फर्स्ट लॉ। सो बहुत ज्यादा इंट्रिकेट डेप्थ में क्वेश्चन नहीं गया। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं कि आइसोथर्मल में क्या होगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसका मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, व्हिच मींस वी शुड हैव प्रेशर डिक्रीजिंग बाय 4 टाइम्स। इसका मतलब P2 की वैल्यू जो है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दैट शुड बिकम एज P1/4 हो जानी चाहिए। और फिर अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखें तो एक तो पॉजिटिव आएगा। सो W1 शुड बी nRT, म्यू RT जैसे हम बोलते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स 1 गिवन है, इनटू R इनटू टेम्परेचर T एंड इनटू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ what natural log of V2/V1। so final volume कितना हो गया 4V1/V1, V1 कैंसिल है। so that become 2 log 2, log 4 को 2 log 2 लिख लेते हैं into RT। अब RT है तो हम इसको PV इक्वल टू NRT से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। so P1 V1 इक्वल टू N is 1 into RT। so RT की जगह P1 V1 प्लेस कर देते हैं। so this into P1 V1 will be the expression for the W1। तो इतना करने में मेरे ख्याल से अगर आप मेरे पेस के साथ करें या उसको डबल भी कर लें तो इससे मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड्स का काम है। हाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो 30 सेकंड्स तो रीडिंग में ही चले जाएंगे। तो तकरीबन हमारा 1 मिनट 15 सेकंड्स इस क्वेश्चन में निकल चुका है। और अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे W2 पे। सो W2 पे अगर हम चेक इन करते हैं तो वर्क परफॉर्म्ड ओवर देयर। सो W2 पे किस तरीके से चेक इन कर, एडियाबैटिक है। सो एडियाबैटिक है तो कोई मुश्किल बात है नहीं। आपको फॉर्मूले से आप पहले चेक कर लो कि आप कौन सा रिलेशन, कौन सा गैस लॉ लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एडियाबैटिक यू कैन अप्लाई PV पावर गामा और यू कैन अप्लाई TB पावर गामा -1 या फिर वो PT वाला लॉ भी लगा सकते हो। पहले एक तो वो चेक कर लो और कि कौन सा आप गैस लॉ यूज करोगे, क्योंकि आइसोथर्मल में आपने गैस लॉ यूज करा PV इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरा वर्क डन का एक्सप्रेशन। सो वर्क डन इन एडियाबैटिक क्या होता है, वर्क डन इन एडियाबैटिक इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल V initial and upon 1 minus gamma, that is supposed to be the expression for the work done in adiabatic। so let's try out। हमें actually final pressure चाहिए होगा जो कि क्वेश्चन हाइड कर गया था। अब उसके लिए मैं PV पावर गामा को यूज कर लेता हूँ जिससे मैं उस फाइनल प्रेशर को इवेल्युएट कर लूंगा। so allow me to do that। so I am applying PV पावर गामा। इनिशियल प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, P2 की वैल्यू मैंने निकाल के P/4 फाइंड आउट कर ली है। So that's P/4 into volume, that is 4V1 पावर गामा। और ये मोनोटॉमिक है तो गामा मेरे ख्याल से आप हिट कर पाएंगे। गामा कितना होगा 5/3 फॉर द मोनोटॉमिक गैस, राइट। सो दैट्स 5/3, so that's 4V1 पावर 5/3 एंड माइनस ऑफ द इनिशियल प्रेशर। नो फाइनल प्रेशर तो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने इनिशियल पहले लिख दिया, तो ठीक लिखा है मैंने, द इनिशियल पहले लिखा है, दिस इज एंड शुड बी इक्वल टू द फाइनल प्रेशर जो कि हमें फाइंड आउट करना है एंड इनटू V। फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका है 32, सो 32 इनटू V1 एंड पावर गामा कितनी 5/3। सो दैट्स व्हाट द रिलेशन इज। सो अब मेरे ख्याल से कैंसलेशन वैल्यू सेटअप है, मुश्किल नहीं है। V1 उड़ा देते हैं और ये 4 8 हो जाएगा। अब 5/3 मतलब 1/3 ऑफ पावर ऑफ 8, दैट मीन्स 2। क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, करेक्ट है। सो दैट बिकम्स P/4 इक्वल टू P फाइनल इनटू 32। so therefore the pressure has fallen drastically, that becomes P/4 into 32, that has become in the value for the final pressure। I think ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्वेश्चन बेसिकली 4 स्टेज का क्वेश्चन हुआ। पहले आइसोथर्मल में आपने क्या यूज करा एज द गैस लॉ, और फिर वर्क डन, और सेम तरीके से एडियाबैटिक में आपने क्या यूज करा गैस लॉ एंड द वर्क डन, राइट। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट्स लाइक अ मल्टीपल टेस्टिंग ऑफ योर नॉलेज, राइट। सो इट इज टेस्टिंग योर वर्क डन as well as it is testing your gas laws and which gas law to be applied as per जो information है। Good। and value for the W2 from there that comes out to be equal to value डालने में तो हम आए हैं। फाइनल प्रेशर कितना हो गया P/4 into 32 एंड फाइनल वॉल्यूम कितना था 32 ऑफ V1। ये सब कुछ P1 के कंपैरिजन में सारा इनिशियल प्रेशर P1/4 था, है ना। तो ये एंड माइनस ऑफ P इनिशियल दैट इज P1/4 एंड इनटू द V इनिशियल प्रेशर, वो हमने 4V1, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही था ये इन्फॉर्मेशन, हमने तो बेसिकली प्रेशर की इन्फॉर्मेशन चेक करी है। एंड 1 माइनस गामा, सो गामा हो गया आपका 5/3।
सो ये 32, ये 4 and 4 कैंसिल, ये 32 पूरा कैंसिल है. So 1 upon 4 minus 1 in the numerator, that becomes minus 3 by 4. So minus 3 by 4 P1 V1, and divided by 1 minus 5 by 3, that becomes minus of 2 by 3. So I think that becomes plus of 9 by 8 P1 V1. That's the value for your work W2. And finally W1 upon W2 can be evaluated. W1 हमारा था 2 log 2 P1 V1 and divided by 9 by 8 P1 V1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी आप वैल्यू डाल के चेक इन कर सकते हैं that what will be the nearest integer value, या फिर जो भी न्यूमेरिकल डेटा है exactly आप फीड इन कर सकते हैं. राइट, सो गुड क्वेश्चन बट नथिंग आउट ऑफ द बाउंड. ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में जो कि आपको नहीं आता है, एंड एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल. कोई बहुत ज्यादा इंटीग्रेटिव क्वेश्चन तो है नहीं कि आप डरे हुए क्वेश्चन से. सो माय बेट ऑन द क्वेश्चन इज दैट वाज सपोज्ड टू बी अटेम्प्टेड. हाँ, टाइम लगेगा आपको, पर 3 से 4 मिनट बोले हाँ तो बिल्कुल एप्ट टाइम लगेगा. सो ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन है. इट्स एन ऑप्टिमम टाइम. आई थिंक द सॉल्विंग टाइम कैन बी अराउंड 3 मिनट्स फॉर एवरेज प्लस स्टूडेंट. इतना समय उसको जरूर लगेगा इस क्वेश्चन को. एंड वर्डिक्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो मीडियम लेवल से थोड़ा सा प्लस बोलेंगे. सो मीडियम प्लस रिगार्डिंग नॉट अ कॉन्सेप्ट, बस इन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कि आपको एडियाबैटिक भी टच हुआ और आइसोथर्मल भी टच हुआ, दोनों गैस लॉस टच हुए, तो मीडियम प्लस क्वेश्चन हो जाता है. टफ नट टू क्रैक नहीं क्वेश्चन है फिर भी ये. राइट, आगे बढ़ते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम ब्रिंगिंग यू इज फ्रॉम द हॉट टॉपिक वंस अगेन, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स टॉपिक. एंड इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा और साथ में थोड़ा डायनामिक्स लग रहा होगा. एग्जैक्ट कैटेगरी बोले तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So that's basically the question concept, I think so. The motion of the charge particle in electric field, right? In the uniform electric field. That's basically the question area and the concept over there. And I've been hinting the student this year, this particular time, that more questions will be asked from mechanics and electrodynamics. That have always had been my bet. I've been explaining to the students that these areas are very, very strong area जहाँ से question बार बार पूछे जाते हैं. और एक और मैं बार बार हिट करता हूँ कि ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये अलग अलग टॉपिक्स हम ना माने, ये बेसिकली एक सिंगल टॉपिक है. तो ये एडवांस में क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं. दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. काफी सारी इंफॉर्मेशन है. और इन्फॉर्मेशन क्या है कि ग्रेविटी है या नेग्लेक्टेड है, और v की जो वैल्यू है दैट इज 2√10 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. दैट्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल गिवन, जिसका स्पेसिफिक चार्ज हमें गिवन है 10⁻10. और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, डायरेक्शन गिवन है वर्टिकली डाउन, एंड दैट इज 400√3 न्यूटन पर कूलम. इसका मतलब ग्रेविटी तो नहीं है या नेग्लेक्टेड है, तो उसकी जगह एक उसी डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फील्ड है जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगी. तो अब g की जगह बस a को यूज कर लेंगे. सो a over there becomes equal to force upon mass, so should be QE by m. So that is what the acceleration is there. So the question goes into a parabolic path basically. तो इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल आर्टिकल को साथ में लेकर चलेगा. So that's how the question concept is over there, right? एंड देन अब जब हमें ये क्रैक इन हो जाता है तो फिर क्वेश्चन डन है. और हमें हेल्प कैसे मिलती है? क्वेश्चन में रेंज गिवन है 5 मीटर. सो दैट्स द रेंज ऑफ द क्वेश्चन गिवन. और पूछा क्या है, दो बातें पूछी हुई हैं. एक तो बताना है कि जो इनिशियल एंगल ऑफ थ्रो है वो क्या है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, और दूसरा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट इवैल्यूएट करना है. आई थिंक बच्चों के फिर से स्माइल वापस लौट जाती है. ऐसा क्वेश्चन जब सामने आता है, मेहनत सफल होती हुई दिखती है उस समय पे, थोड़ी टेंशन जरूर होती है उस समय पे, बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि हाँ 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 ये तो हम कर सकते हैं. एंड सो लेट्स सी दैट व्हाट टू बी अटेम्प्टेड. तो रेंज का एक्सप्रेशन ले लें क्योंकि रेंज हमें दिया हुआ है. तो रेंज का एक्सप्रेशन होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा एंड अपॉन g होता है, पर यहाँ पे g नहीं है तो वहाँ पे a आ जाएगा. सो यहाँ पे a प्लेस कर लेते हैं और आई थिंक यहाँ से सीधा आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये तो बिल्कुल एक सॉल्विंग क्वेश्चन हो गया. इसके अंदर कुछ डमी नहीं रहा क्वेश्चन में. Q यहाँ से चेक कर लें 400√3 है, और नहीं सॉरी e की वैल्यू, और Q बाई m आपका स्पेसिफिक चार्ज हो गया वो 10/10 हो गया. सो दैट्स बेसिकली द वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन. ये वैल्यू हमें यहाँ पे फीड इन करनी पड़ेगी. और साइन 2 थीटा लिख लेते हैं. यहाँ से कितना हुआ, साइन 2 थीटा बिकम्स इक्वल टू a into r upon u स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन QE by m जैसे हमने देखा. सो 400√3 ये e की वैल्यू एंड इनटू 10⁻10.
सो एक्सेलरेशन आ गई, रेंज की वैल्यू 5 गिवन है और स्पीड हमें गिवन है 2√10 इंटू 10⁻6, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। सो 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 ये आ जाएगा। सो कुछ कैंसिलेशन देखें तो 10/10 एंड ये पूरा कैंसल्ड है और ये 4 and 4 भी पूरा कैंसल्ड है और ये 2, सो दैट बिकम्स √3/2। तो साइन 2 थीटा इज √3/2, सो साइन 60 √3/2 होता है। इसका मतलब 2 थीटा बिकम्स इक्वल टू 60, सो थीटा बिकम्स इक्वल टू 30 डिग्री। सो इट्स इजी सॉल्विंग ऑल्सो, इट्स एन इजी सॉल्विंग ऑल्सो। थीटा मिल गया आपको। अब टाइम ऑफ लाइट निकालना है, वो तो वर्टिकल से निकलता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। सो टाइम ऑफ लाइट कितना होगा, दैट शुड बी 2u sin थीटा अपॉन g, g की जगह बस a है। That's what the question is basically. So मेरे ख्याल से आप भी स्माइल कर रहे हैं जो इसको देख रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड ट्वाइस ऑफ u कितना है, दैट इज 2√10 इंटू 10⁻6 एंड अपॉन a वैल्यू दैट वाज 400√3 इंटू 10⁻10। ये भी बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होने वाली है। और साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। सो I think you will be able to just easily calculate this and get to your answer, right? So for this answer question, the verdict of me ki what is the opinion of me regarding this particular question, I will keep this moderate. So moderate, that's an easy to moderate question over here and within time frame question है, बहुत बहुत easily, मतलब ऑप्टिमम टाइम नहीं है कि 4 मिनट लग जाएंगे आपको, विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट एक एवरेज प्लस स्टूडेंट इस पे लगा के क्वेश्चन को हासिल कर सकता है। सो दैट्स अ विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन, राइट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि अभी तक की जो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के टाइम को खा जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं है। एंड अभी जो हमारा सेशन चल रहा है ना, जो अभी चल रहा है अभी, तो उसके लास्ट के 2-3 लेक्चर्स के अंदर का ही ये क्वेश्चन है जो कि हमने करा हुआ है। आपको जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन हमेशा फ्रेश आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कि जो देखे हुए हैं। वो झूठ होगा अगर मैं बोलूं कि नहीं यार ये तो देखो एग्जैक्टली वही आ गया, फिर ये IIT की प्रोफेसर की मेहनत के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हर बार वो मेहनत से नए नए क्वेश्चन बनाते हैं, जो चैलेंज करते हैं कि आपने जो स्टडी करा आप उसको अप्लाई करके दिखाएं, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन उस तरीके से है कि हमारे पास देखो ये कंडक्टर गिवन है एंड कंडक्टर इज लाइक दिस, ये आपका सर्कुलर कंडक्टर है, इस तरीके से मैंने शेड करके दिखा रही है। उसका एक इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस कितना है R2 है, और एक बैटरी गिवन है V0 पोटेंशियल की, और रेजिस्टेंस इसका गिवन है R0 है। ये आपका डेटा गिवन है और पूछा क्या गया है, व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस, से पूछा गया बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस। सो हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहां पर आ रहा है, द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बहुत मुश्किल वो आपको लगेगा कि सर आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल तो इस एंड और इस एंड के बीच में है, तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैसे पूछ रहे हो। तो बोलेंगे बेटा काइंड ऑफ एक तो हमने हॉल इफेक्ट करा हुआ है तो वो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। तो फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है जहाँ पे एक ऐसी डिस्क होती है और ये जो डिस्क है वो रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट। सो दिस इज अ सर्कुलर सेक्शन विच इज अंडर योर रोटेशन विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। कितनी स्पीड से, विद एन ओमेगा ओवर देयर। सो अब शायद क्वेश्चन आपको हिट करेगा। तो फिर हमसे पूछा जाता है कि सेंटर और एज के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूछा जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है तो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस लेवल का है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर इस नजर से देखें कि हम इसके अंदर एक एनुलर डिस्क एज्यूम कर लें, इस तरीके से एनुलर डिस्क मान लें कि जो भी आपके चार्जेस वगैरह हैं वो सारे सिर्फ इस हिस्से में आ रहे हैं, इस वाले हिस्से में, और ये एनुलर डिस्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई थिंक आप बात को समझ जाएंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली उस तरीके का क्वेश्चन हो गया है कि अब आपसे पूछा जाए कि इसके और इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बेसिकली क्वेश्चन आ गया है। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनने लगा अब। तो अब इसके अंदर जो करंट है वो इस तरीके से मूव ऑन करेगा इधर, और करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव इन करेंगे। सो दैट मींस कंडक्शन करंट जो होता है वो इधर मूव करेगा। दो तरीके के करंट होते हैं, एक तो कन्वेंशनल जो कि हमें मेंशन है, दूसरा कंडक्शन करंट मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि एक्चुअल करंट होता है। तो इस डायरेक्शन में VD आ जाएगी फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो वो दोनों तरीके से क्वेश्चन देख सकते हो। दैट डज नॉट मीन कि आप इलेक्ट्रॉन से देखो, आप पॉजिटिव चार्ज से भी क्वेश्चन को देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो उसकी VD इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, राइट। और सेम तरीके से देख सकते हो इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव वाले से। और फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी दैट शुड बी m ओमेगा स्क्वायर इनटू r।
जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी अगर ये डिस्टेंस इसका स्मॉलर है, और इसकी वजह से ये बाहर की तरफ शिफ्ट इन हो जाएगा, इट इज गोइंग टू शिफ्ट इन, एंड एंड हेंस कोई फोर्स चाहिए होगी कि जो इस करंट को, इस चार्ज पार्टिकल को अलोंग दिस मूव कराए। तो वो जो फोर्स होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर लगनी चाहिए जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करे, एंड दैट शुड बी द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, और वहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व इन हो जाएगा। सो द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, एंड देन ऑफ कोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे तो भाई देखो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अलावा तो कुछ और दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वो सप्लाई करेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फिर आपको पोटेंशियल तक कैसे पहुंचोगे, तो वो आपका ग्रेडियंट क्वेश्चन होता है, दैट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन के पीछे जिससे ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। सो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अभी तो सॉल्विंग स्टार्ट नहीं हुई है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट डिस्कशन व्हिच वी हैव डन, और अब सॉल्विंग स्टार्ट करें तो वो हमें ज्यादा समय नहीं लेगी। सो दैट्स E इंटू E, मैं सब पॉजिटिव के हिसाब से देख रहा हूँ, दैट्स इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और फिर E को प्लेस इन कर लेंगे एज इक्वल टू dV अपॉन dr इन द मैग्नीट्यूड, और फिर उसको सॉल्व इन कर लेंगे, एंड फ्रॉम देयर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से आ जाएगा, दैट dV इज इक्वल टू m अपॉन E इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r इंटू dr। इसको इंटीग्रेट करो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी m ओमेगा स्क्वायर अपॉन E, और r dr का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो ये आपने बहुत आराम से ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। सेक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा एनुलर डिस्क नहीं के बना, पर क्वेश्चन की कैटेगरी वही हो गई, एनुलर डिस्क हो गया। सो इट्स बेसिकली एन एनुलर डिस्क क्वेश्चन। सो आराम से क्वेश्चन सॉल्व इन हो जाता है। इंटरनल रेडियस r1 और आउटर r2 गिवन है। So the question is in our hand, m omega square upon twice of E into r2 square minus of r1 square, ये आपका रिजल्ट आ जाता है। एंड आई थिंक आपने प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन देखा हुआ है, उसका सीधा आंसर m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन ट्वाइस ऑफ E है। सो हम उस जो क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं ना, उस समय भी मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा देखो, लेक्चर्स में बोला होता है मैंने, अगर आप रीवॉच करोगे कि बेटा देखो इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट पे ना जाना, इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन कब हमें ट्विस्टिंग कर देता है, हल्का सा ट्विस्ट है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बस सॉलिड ट्विस्ट हो गया, कहानी लिखनी पड़ेगी दोबारा, क्वेश्चन इजीली डन है। सो व्हाट इज द ओपिनियन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? अगर कॉन्सेप्ट आपको हिट हो जाता है तो सॉल्विंग सिर्फ इतनी सी है। सो इट्स विद इन द टाइम फ्रेम क्वेश्चन, विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का स्टेचर में क्या लिखूं? सूडो फोर्स बच्चों को घबराहट देती है, मेरे स्टूडेंट्स को तो नहीं देती है, पर बच्चों को कहीं घबराहट देती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और equal to minus of dV by dr. So I think this question is a moderate plus question. It's not an easy question. It's a moderate plus question. अच्छे बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट टच करा होता है वही इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। सो मॉडरेट प्लस क्वेश्चन में मैं रखूंगा, नॉट टफ टू हार्ड नट क्रैक प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम दिखी नहीं अभी तक, है ना। Then comes the next one, that's a Gauss law, exclusive question of the Gauss law, that's a rare but we do get the questions। बताया हुआ है कि मैंने Gauss law के क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, रूपरेखा थोड़ी सी वैसी है। देखो मैंने बोला था वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन हमेशा आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं आए और एडवांस में ऐसा क्वेश्चन टच ना हो। तो ये बात फिर से सही प्रमाणित हो जाती है कि वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं, मैं रिकंस्ट्रक्ट कर दूं आपके सामने तो ज्यादा इजी रहेगा। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, कि हमारे पास एक रिंग है, देयर इज अ रिंग विद अस, और उसको हमने इस प्लेन में रखा हुआ है। सो दैट्स माय रिंग ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ रिंग ओवर देयर, या डिस्क है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ रिंग, इट्स अ डिस्क जिसके ऊपर एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो इस फंक्शन से गिवन है। स्मॉलर इज द डिस्टेंस, दैट्स अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये हमें गिवन है, राइट। और अब क्या बोला है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक नहीं दो स्फीयर्स हैं। तो पहला स्फीयर जो है वो बिल्कुल इसकी पेरिफेरी को इस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से ये स्फीयर बनाया हुआ है, दिस स्फीयर इज नेम्ड एज S1। आपको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, दैट्स ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट्स द फ्लक्स थ्रू दिस। सो दैट्स एन इजियर क्वेश्चन। हमें सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, कितना चार्ज एनक्लोज है, तो सारा ही चार्ज एनक्लोज हो गया। तो दैट मींस phi1 शुड बी इक्वल टू q कंप्लीट एनक्लोज एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। दैट्स ऑल द क्वेश्चन इज। सो कांसेप्ट इज व्हाट, ऑफ कोर्स द गॉस लॉ कांसेप्ट है, और साथ में जो कांसेप्ट है दैट इज सपोज्ड टू बी द variable charge density, that's what the question is heading। so क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में है, आसान क्वेश्चन होगा,
सॉल्विंग करते समय। क्यू निकालना है आपको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको क्यू को। सो काइंडली इंटीग्रेट इनटू दिस। डिस्क है, डिस्क एलिमेंट है, तो सेंटर से आप यहाँ पे एक माइक्रो डिस्क यहाँ पे बना लेंगे, माइक्रो रिंग बनेगी बेसिकली वहाँ पे, है ना। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉलर डिस्टेंस पे, तो उसका एरिया लिख लोगे। सो उसका एरिया चेक इन करके मेरे ख्याल से फिर आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर लोगे। सो बेसिकली इंटीग्रल डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। डी क्यू हो गया। सिग्मा कैसे लिखते हो, डी क्यू अपॉन डी है एरिया ना। अब एरिया कितना होगा इसका, 2 पाई आर इंटू डी आर, ईजी है ना। आर डिस्टेंस पे आपने वो माइक्रो रिंग ले रही है, कितने थिकनेस की, डी आर की। सो पता ही होता है ना, कार्ड केस ओपन कर देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, थिकनेस से डी आर हो जाएगी, कितनी बार करा हमने। सो डी क्यू अपॉन 2 पाई आर डी आर दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यहाँ से डी क्यू पुट करके आप अपने रास्ते चल पड़ेंगे। सो द वैल्यू फॉर द phi 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस दैट इज सिग्मा नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनटू 2 पाई आर डी आर एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको इंटीग्रेट करना है, सारा चार्ज एनक्लोज है। सो आपको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ओवर, तबाह कर दिया हमने, क्वेश्चन खत्म कर दिया। दैट इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई, बाकी इंटीग्रेशन में तो माहिर ही होते हैं। सो दैट इज आर and minus of r square by capital R into dr, limit 0 से capital R, so that's sigma naught by epsilon naught into 2 pi and small r square by 2 and minus of r cube by 3r 0 to capital R। और ये रिजल्ट आपके सामने डन है, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई कितना हो गया आप देखो, कैपिटल R square by 2 माइनस कैपिटल R square by 3। So capital R square by 2 minus capital R square by 3 will be capital R square by 6 आ जाएगा, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्क्वायर होगा क्योंकि एक R सेकेंड टर्म में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ये आपकी वैल्यू आ गई phi 1 की। और phi 2 वो तो डिफिकल्ट होगा सर, काहेगा डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन क्या है देखो, phi 2 में अब ये वाला स्फीयर है और इस वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो r/4 है, तो क्या हो गया, दुनिया थोड़ी इधर से उधर हिल गई। अब आपने क्या करना पड़ेगा, जितना चार्ज वहां पे इनक्लोज होगा वो देखना पड़ेगा। अब सारा चार्ज इनक्लोज होगा नहीं, वो सिर्फ इतना इनक्लोज होगा, पर लिमिट बदलनी है, दैट्स इट। तो हमने ऐसे कितने क्वेश्चन करते हैं ना जिसके अंदर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड और आउटसाइड पे देखते हैं। हम तो आपको तो ग्राफ भी बनाते हैं, तो ग्राफ भी नहीं पूछे। So this question is easy ना, ये this is an easy one now. So अब आपको बस phi 2 निकालना है, तो बस आपने क्या करना है, that is integral sigma naught 1 minus small r by capital L 2 pi r dr, जो कि divided by epsilon naught है, same term, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, बस लिमिट बदली, and that is from 0 to r/4, और ये आपका आंसर डन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आराम से हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट है, सो टाइम लगेगा। सो ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन हो गया ये आपका, इट्स एन ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन, करेक्ट टाइम आपको मिल जाएगा इसका, दूसरे क्वेश्चन को फिर से नहीं खाएगा ये। सो इट्स एन ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन एंड वर्डिक्ट मीडियम प्लस, इट्स अ मीडियम प्लस, इट्स अ मीडियम प्लस क्वेश्चन। रीजन बिकॉज मैं मीडियम प्लस इसलिए बोलूंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे कॉस्ट लॉ के अंदर वेरिएबल डेंसिटी की तरफ जाते नहीं है, पर जो एक्चुअल एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ सारे बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं वो एक्चुअल एडवांस स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो उस क्वेश्चंस को खुद नहीं टच करते हैं। जो टीचर टच करते हैं तो देख लेते हैं, खुद इन क्वेश्चन को टच करने की वो परवाह नहीं करते हैं। सो जो एक्चुअल एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मीडियम लेवल रहेगा, और जो हल्के हल्के एडवांस की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके लिए मीडियम प्लस क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे इस बात को एक्सपेक्ट करके पेपर में जाते हैं कि हमारे टीचर ने बोला है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और आ गया है। सो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, अभी आर्टिकल आपने टच ऑन नहीं करा है, पर स्टिल आई थिंक सो कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। दैट्स अ बोहर मॉडल एंड स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हमने इसको वर्क एनर्जी में टच इन करा है क्वेश्चन को। इसको पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है F into R, F यहाँ पे कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच इज गिवन टू अस, और स्मॉलर क्या है, दैट्स अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ओवर देयर, दैट्स अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ओवर देयर। और हमसे पूछा क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n गिवन है, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑर्बिटिंग, उसकी स्पीड का
n की किस पावर के साथ रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है, और जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है उसका n की पावर के साथ क्या रिलेशन है। सो बेसिकली ये पावर्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। हाउ डज द v डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and how does the r depends upon the principal quantum number. So how do we approach the question? Question has to be approached, question concept हम चेक करते हैं कि होगा क्या। सो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाता है और उस रिलेशन पे आ जाता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उस आइडिया को टच इन करता है कि आप फोर्स निकाल के फिर करेंगे क्या, फोर्स के थ्रू आप काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैसी होगी? सेंट्रीपिटल होगी। कैसी होगी? सेंट्रीपिटल होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगी? mv स्क्वायर बाई आर से आएगी। तो इस वजह से आप काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन वहां पे कहीं पे अपने आप को फोकस इन कर लेता है, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी एफ इन टू आर है, इसका मतलब फोर्स जो आ जाएगी विल बी माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। सो दैट बिकम्स एज सिंपली एज माइनस ऑफ एफ आ गई, तो सीधा आर का फंक्शन है। सो दैट सिंपली बिकम्स एज माइनस ऑफ एफ, फिर कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव करेगी। और ये जो फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग रेडियली इनवर्ड, समझ में आ रहा है ना, माइनस साइन है, रेडियली इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो दैट शुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये आपका रिलेशन आ गया है पहला। सो दैट्स द फर्स्ट रिलेशन व्हिच यू हैव गॉट ओवर देयर। इसमें v और r दो वेरिएबल्स हैं और हमें बेसिकली उन्हीं दोनों पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। तो ये बेसिकली कहां से आया? दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द नील बोहर। फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द नील बोहर में क्या बोला जाता है? दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट। और फिर थर्ड पोस्टुलेट आ जाता है। तो बेसिकली फिर से ये एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन ही बन चुका है वापस से, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे यूज हो गई है और सर्कुलर मोशन यूज हो रहा है। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा नील बोहर थ्योरी पे जाता है जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन, स्टेचर इज देयर। और थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द नील बोहर जो है, जो कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से लिंक्ड अप होता है, क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और वहां से आपको n एंट्री करता हुआ क्वेश्चन में नजर आता है। सो वी हैव द एंगुलर मोमेंटम mvr, सर्कुलर पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? mvr इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। दैट्स ए क्वेश्चन नंबर 2। और यहां से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको ट्राई करके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, एक v है एक r है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक पार्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से v पिकअप कर लो, दैट विल बी NH अपॉन 2 पाई mr, और इसको पहली वाली क्वेश्चन में प्लेस कर देते हैं। दैट्स एज इजी एन क्वेश्चन इट कैन बी। सो f becomes equal to that is m upon r and into v square, तो इसको स्क्वायर अप कर दो, that is n square h square upon 4 pi square m square r square। हर साल अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के भी नोट्स देखोगे किसी स्टूडेंट से, तो हर साल मैंने क्लासेस में ऐसी 10-12 डेरिवेशंस कराई होती हैं, v निकालने की, r निकालने की, करंट निकालने की, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, बहुत सारी कराई होती हैं। सो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बार बार आप क्यों करा रहे हो? तो मैं स्माइल अप कर लेता हूँ, मैं स्माइल अप करके सोच लेता हूँ कि ओके, मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि बेटा तू एडवांस नहीं करने वाला है। मैं डिमोटिवेट नहीं करता, मैं बोलता कोई बात नहीं बेटा, है, एवरीवन कैन नॉट बी रिसर्चर, पर अगर आपका दम है, आपको लगता है कि आपको एडवांस करना है, तो फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग आनी पड़ेगी। तो ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आपको जब नील बोहर थ्योरी आएगी, एटॉमिक फिजिक्स आएंगे, तो ऐसे काफी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 10-11 तरीके के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको दिखेंगे, और बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। इसमें बहुत डेप्थ में चीजें होती है, मजा आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डन है। देखो, अब मेरे ख्याल से f इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r में v की वैल्यू आपने प्लेस कर दी। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से r को इवेल्युएट कर लो, v एलिमिनेट हो गया है, और फिर n की पावर आप चेक इन कर लोगे। तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये r क्यूब हो गया और ऊपर n स्क्वायर हो गया। सो दैट इज r क्यूब प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ गया। सो r प्रोपोर्शनल टू n पावर 2/3। तो ये आपको चाहिए था, ये आपको मिल गया है। तो ये कोई लंबी कैलकुलेशन हुई नहीं। और सेम तरीके से वापस इस r को अगर आप यहाँ फीड इन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको v का फंक्शन मिल जाएगा। सो दैट v ओवर देयर इज प्रोपोर्शनल टू n बाई r आ रहा है। हमें तो बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी देखनी थी। सो n बाई r आ रहा है, सो दैट इज n अपॉन यहाँ से n पावर 2/3 आ जाएगा। सो आई थिंक प्रोपोर्शनल टू n पावर 1/3, इस तरीके से रिलेशन आपका इजीली वर्क अपॉन हो गया है।
सो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टच इन हो गया, दैट इज अ नील बोहर पोस्टुलेट्स। सो पोस्टुलेट्स आपको फर्स्ट एंड थर्ड पोस्टुलेट आपको यूज हो गया है और वहां से क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व इन हो जाता है। सो व्हाट्स ओपिनियन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो ओपिनियन इज सपोज टू बी विद इन द टाइम फ्रेम। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं गया क्योंकि सॉल्विंग तो आई नहीं, बस ये दोनों चीजें आपने अप्लाई करी और फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी चेक करी। सो विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन है, ये फिर से किसी और क्वेश्चन को खाएगा नहीं, ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंट बात होती है। विद इन द टाइम फ्रेम क्वेश्चन है। एंड माय डियर, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन स्टेटस? आई विल से मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, या मीडियम प्लस बोल सकते हैं। रीजन बिकॉज ऑफ दिस आइडिया, रीजन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडिया इज दिस, है ना, कि आपने इसको डिफरेंशिएट मारा है। तो 3 लेवल लगे क्वेश्चन में, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड देन फर्स्ट एंड थर्ड पोस्टुलेट एंड देन द क्वेश्चन गेट्स सॉल्व। सो मीडियम प्लस पे हम इसको रखना पसंद करेंगे, राइट जी। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स अ फ्लूइड्स क्वेश्चन, फ्लूइड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंट्रिकेट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंट्रिकेट क्वेश्चन नहीं होना है। फ्लूइड का बिल्कुल बेसिक आइडिया से क्वेश्चन आया, दैट इज अ पास्कल लॉ। तो ऐसे इक्वलाइजेशन ऑफ द प्रेशर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे। आपको मैं ध्यान लगाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आपने देखे होंगे कि आपके पास एक यू ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और फिर उसमें एक तरफ से कोई लिक्विड डाला, दूसरी तरफ से दो कोई और लिक्विड डाला, फिर वो कहता है लेवल्स बताओ कि वो फाइनली किस लेवल पे सेट होगा। याद आया होगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन आपने काफी करे होते हैं, या आपके ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर पहले से पानी होता है, फिर आप दूसरी तरफ से केरोसिन या कोई ऑयल डालते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि लेवल थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपने काफी सारे करे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जहां पर आपको इनिशियली क्या कंडीशन गिवन है कि 0.29 मीटर का पानी का लेवल दिया हुआ है और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के हिसाब से आपको पता है कि दोनों साइड पे लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्योंकि सेम लिक्विड है तो सेम लेवल रहेगा। तो पानी है, पानी की डेंसिटी अपने को पता होती है, दैट्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट्स द डेंसिटी ऑफ इट। और अभी फिलहाल पानी है। और क्या करा फिर उन्होंने, फाइनली क्या करा है कि उसके अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड वाले लिम्ब में केरोसिन डाल दिया है, केरोसिन डाल दिया। पर केरोसिन की कितनी हाइट पुट इन करी है, दैट्स 0.1 मीटर। और केरोसिन की जो डेंसिटी है दैट इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ऑयल की डेंसिटी, अब अगर ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व करा होगा तो 0.8 गिवन होती है रिलेटिव डेंसिटी, सेम एज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो जब वो केरोसिन डाल देंगे तो लेवल शिफ्टिंग होगी ऊपर नीचे, है ना। तो लेफ्ट साइड पे फाइनल लेवल H1 है और राइट साइड पे जो फाइनल लेवल है वो H2 है, क्योंकि अब लिक्विड डिफरेंट हो गए। एक साइड पे लेवल कम, एक साइड पे लेवल ज्यादा, स्टैंड अप कर सकता है। तो H1 और H2 का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज बेसिकली। तो आराम से कर सकते हो क्वेश्चन आप, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्या है, एक तो आप देख लो कि टोटल लेवल है कितना H1 और H2। तो देखो पूरा का पूरा पहले 0.29 मीटर इधर था, तो डेफिनेट सी बात है 0.29 मीटर इधर आएगा। तो ये 0.29 एंड प्लस 0.29 हो गया और एक्स्ट्रा 0.1 मीटर आपने और डाला है, सो प्लस 0.1, वही तो लेफ्ट और राइट पे सेट इन होगा। पानी कंप्रेस थोड़ी हो जाएगा। ओ, इसका मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्रेसिबल। इट्स एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जितना लेवल है उतना रहेगा, कंप्रेस नहीं होगा लिक्विड। और सेकेंड आपने पास्कल इक्विलाइजेशन प्रेशर यूज करना है। सो पास्कल लॉ के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। दैट इज फॉर द इक्विलाइजेशन ऑफ द प्रेशर एट द बेस। क्या बोला मैंने? इक्विलाइजेशन ऑफ द प्रेशर एट द बेस, उसके ऊपर ये आपका सवाल निर्धारित है। सो टोटल वैल्यू H1 प्लस H2 की एक तो सीधा निकल गई, दैट बिकम्स 0.29 एंड प्लस 0.1 0.3 हो गया, 0.3 प्लस 0.29 0.59 मीटर। दैट्स वन इक्वेशन व्हिच यू हैव गॉट। क्योंकि आपको रेशियो निकालना है तो एक और इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है तो मेरे ख्याल से फिर आप शायद कॉम्पोनेंट और डिविडेंड से या फिर इंडिविजुअली H1 H2 फाइंड आउट करके फिर रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको कहाँ से मिलेगी, इक्विलाइजेशन ऑफ प्रेशर से मिल जाएगी। सो हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, मैं सीधा सीधा बना देता हूँ इसको। सो व्हाट इज हैपनिंग कि लेफ्ट साइड पे जितना भी लेवल है वो तो सारा का सारा पानी का है, उसमें तो कोई हमें डाउट है नहीं। ये जितना भी लेवल है वो आपका पानी का लेवल वहां पर आएगा, है ना। और इस तरफ जो फाइनल आएगा, इस तरफ जो फाइनल आएगा वो पता नहीं ऊपर आएगा नीचे आएगा, छड्डो उसको। तो उसमें यहाँ पे एक तो केरोसिन आएगी, पर उसका लेवल क्योंकि हल्की होती है तो केरोसिन ऊपर आएगी, तो 0.1 मीटर होगा। और ये पूरी हाइट हमें H2 बोली है, फाइनल कंडीशन में H1/H2 बोला है ना। तो ये पूरी हाइट आपको H2 बोली है और बाकी नीचे आपका ये पानी है। दैट्स व्हाट द बिहेवियर इज। और इस पॉइंट पे आप
लेफ्ट साइड और राइट साइड से क्या करो, प्रेशर को इक्वलाइज कर लो। तो पहले लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सो पी नॉट प्लस H1 इंटू, ये तो पानी है, पानी की डेंसिटी होगी 1000, डेंसिटी ऑफ द वाटर यूज करिए, इंटू जी। जी अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, मैं 9.80 लिख देता हूँ बी ऑन द सेफर साइड, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना पी नॉट राइट साइड से देख रहा हूँ, सो दैट इज इक्वल टू पी नॉट में हंसे इसलिए शायद जी कैंसिल ना हो जाए बाद में। सो पी नॉट प्लस, अब हाइट देख लेते कितनी है इसकी, 0.1 है। लेकिन ये क्या कौन है, ऑयल केरोसिन है, तो उसकी डेंसिटी कितनी थी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इंटू 800 एंड इंटू 9.8, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हम प्रेशर पे। और अब बाकी नीचे जाएंगे, तो बाकी नीचे हाइट है H2 माइनस 0.1, ये बाकी हाइट बच जाती है। सो दैट इज प्लस H2 माइनस 0.1 एंड इनटू, अब नीचे तो अपना पानी है भाई, पानी की डेंसिटी कितनी 1000 and into G, H rho G is the formula, variation of the pressure. P naught cancel है, जैसे मैंने बोला था, G basically cancel out हो जाएगा, so hence it is H1 into 1000 as 0.1 into 800 and plus H2 minus 0.1 into 1000, G पूरा का पूरा उड़ गया है, और ये 1000 भी अगर आप उड़ा लो तो ये आपका 0.8 आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बोला था। यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी H1 और H2 में, आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। सो आई थिंक आई हैव फाउंड द क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज वन इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, H1 प्लस H2 इक्वल टू 0.59 मीटर, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप H1 फाइंड आउट कर सकते हैं, H2 फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर दैट H1 अपॉन H2 की वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी। सो इट इज एन ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन, आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में, कैलकुलेशन आप कर रहे होगे, क्वेश्चन को हिट भी करना है, देखना भी है, समझना भी है, फिर सॉल्विंग भी करना है। सो इट्स एन ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन, पूरा टाइम ये आपका खा जाएगा, जो आपके अलॉटेड 3-3.5 मिनट है क्वेश्चन के, सो आपको पूरा टाइम खा जाएगा आपका, तो ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैटेगरी में अगर बोलूँ तो फिर से मैं मीडियम ही रखूंगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इक्विलाइजेशन ऑफ प्रेशर, तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होगा, है ना, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये कैटेगरी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है बट डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड वंस अगेन आई जस्ट सेड द हॉट टॉपिक इज येट अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको दिख रहा है कि कैसे क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था बार बार, कि जब रियल पेपर आएगा तो आपको मेरी बात बार बार समझ में आएगी कि हम इन चैप्टर्स पे इतना टाइम क्यों लगाते हैं। वाई डू वी स्ट्रेस अपॉन दीज टॉपिक्स, रीजन बिकॉज यही कोर हार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अब शायद आप इस बात पर्टिकुलर बात को बिलीव करेंगे, और इस बिलीव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू आर अमंग दोस क्वेश्चंस हु विल बी क्लियरिंग द JEE एडवांस नेक्स्ट ईयर। हैव दिस कॉन्फिडेंस, आफ्टर सॉल्विंग दिस पेपर हमें वो कॉन्फिडेंस आएगा बिल्कुल आएगा कि हम ये काम कर सकते हैं, राइट। अब देखो, एक आइडिया अभी तक टच नहीं हुआ था, दैट वाज SHM। कितने क्वेश्चन करते हैं ना हर चैप्टर में कि SHM का क्वेश्चन, हम मुस्कुराते हुए हैं कि सर देखो, सर आप बोलेंगे, सर अगला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, सर प्लीज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, यही बोलेंगे। तो फिर से बेटा वो क्वेश्चन आ गया है एक बार फिर से, और किस तरीके का क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, रिलैक्स स्प्रिंग गिवन है, ठीक है, और उसका Q और M गिवन है, बिल्कुल एंड पे जो पार्टिकल है उसका, उस स्प्रिंग के एंड पे एक पार्टिकल रख दिया जिसका स्पेसिफिक चार्ज है Q/M, मतलब Q और M अलग अलग गिवन है, और स्प्रिंग इस समय पे क्या है, रिलैक्स पोजीशन पर है इस समय पे। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक डाइपोल रख दिया, यू हर्ड मी राइट, ये इसके अंदर एक डाइपोल का क्वेश्चन है, वो डाइपोल को आपने यहाँ पे रख दिया इस जगह पे, इसका डाइपोल मोमेंट P है, और फिर क्वेश्चन पहले पूछता है कि इक्विलिब्रियम उसकी पोजीशन क्या होगी। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर आप देख लें कि वो कहाँ पर होगा, तो ये स्प्रिंग एक्सपैंड कर जाएगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी, इसके एक्सिस पर आएगी, तो एक एक्सियल पॉइंट हो जाएगा डाइपोल का, तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी Q इंटू E, और फिर यहाँ से स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगी, दैट विल बी K इंटू एक्स नॉट रख लेते हैं, तो एक्स नॉट उसकी इक्विलिब्रियम एक्सपेंशन आ जाएगी, याद आया, अभी अभी क्वेश्चन कितना है हमने ये अभी थोड़े दिन पहले। सो क्या हुआ, दैट बिकम्स K एक्स नॉट, दैट बिकम्स इक्वल टू Q इंटू E, ऐसा हो जाएगा K एक्स नॉट, और उससे आपको एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। सो एक्स नॉट फ्रॉम देयर विल बी इक्वल टू Q इंटू E अपॉन K, और E की वैल्यू को आप आराम से प्लेस इन कर लेंगे वहां पे, राइट। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बियॉन्ड दिस पोजीशन। तो अगर आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन करके उसको छोड़ देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, सो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट, आपको प्रूव करना है कि वो ऑसिलेशन SHM है, और फिर उसका टाइम पीरियड निकालना है।
तो बहुत आसान सी बात हो गई यहाँ पे कि आपने अगर इसको यहाँ से हल्का सा और आगे लिया बाय एन एक्स्ट्रा एक्स ओवर देयर, सो क्या होगा, एक तो क्यू ई फोर्स चेंज हो जाएगी और यहाँ पे भी एक्सपेंशन चेंज हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस एक्स आ जाएगी। सो हमें तो पता ही है कि जो एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा जो आएगा उसकी वजह से सारी कहानी बनेगी। पर एज अ ट्रेडिशन जैसे हम लिखते हैं हम उस तरीके से लिख लेते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस ऑफ क्यू इंटू ई डैश। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से बनेगा। ये हमें शायद बात समझ में आ रही है, राइट। और के एक्स नॉट, के की वैल्यू आप ढूंढ के बाद में फिट इन कर सकते हैं, कर लेंगे हम उस बात को। तो कैसे करें अब आगे आगे आप करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके ऊपर चेक इन कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज करा। सो कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल, दैट इज अ एक्सियल फील्ड ऑफ द डाइपोल। बेसिकली आपको चेक करनी थी कि क्या वो आपको आती है कि नहीं आती है, पहला तो वो हो गया। और दूसरा आपको ये कि जो फोर्स आनी चाहिए दैट शुड बी द लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, जिससे आप टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम को इवेल्युएट कर पाए। ये आपको करना है। जब हम लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस में बोलते हैं स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, जहां पर अब एक्स को बाद में नेग्लेक्ट कर देते हैं या बोल देते हैं एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना, जब, तो उस तरीके की लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है। सो k इंटू एक्स नॉट प्लस k इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू ई डैश, ई डैश की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ k इंटू पी। अब ये k दूसरा वाला k है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला है, तो के ई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो बाद में आप 1/4πε0 देख सकते हो उसको। सो ट्वाइस ऑफ के ई इंटू पी अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। तो पहले उसका जितना डिस्टेंस है वो आप चेक इन कर लोगे यहाँ से, ये वाला जितना डिस्टेंस है, और उसके बाद में ये अगर इनिशियल डिस्टेंस आर नॉट है, तो अब जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होके कितना हो गया, न्यू डिस्टेंस हो गया, तो कितना हो जाएगा आर नॉट एंड प्लस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर नॉट प्लस एक्स आ जाएगा, और उसका ये होल क्यूब बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, राइट। और पहले जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, उसमें ये जो टर्म होगी दैट विल बी क्यू इंटू 2kp अपॉन आर नॉट क्यूब, ये आपका फंक्शन आ जाएगा, राइट। कि पहले जो डिस्टेंस है वो आर नॉट था, और अब वो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, दैट विल बी आर नॉट प्लस एक्स। पी से डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना यहाँ से कि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, तो वो डिस्टेंस हमने बता दिया है कि ये पूरा डिस्टेंस आर नॉट हो जाएगा, और ये आपका जो डिस्टेंस है अब दैट विल बिकम आर नॉट प्लस एक्स बाय स्लाइटली एक्सपैंडिंग। यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। दैट विल बिकम माइनस ऑफ के एक्स नॉट एंड प्लस के एक्स और q इंटू 2kep। बाइनोमियल यूज करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से आप आर नॉट क्यूब को अगर बाहर निकाल लोगे दैट विल बी 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट पावर 3, ये ऐसे आ जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर रिडक्शन करोगे सो माइनस ऑफ के एक्स नॉट एंड प्लस के एक्स माइनस ऑफ क्यू इंटू 2kp अपॉन आर नॉट क्यूब, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट इन कर लोगे आप, सो विल बी 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट रेस टू द पावर -3 आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी योर रिजल्ट। और फिर दिस बिकम्स एज माइनस ऑफ के एक्स नॉट एंड प्लस के एक्स माइनस क्यू 2kp अपॉन आर नॉट क्यूब, पावर आगे ले आओगे बाइनोमियल से 1 माइनस 3x अपॉन आर नॉट, ये आपका एक्सप्रेशन आउट हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन अप करोगे, जैसे आप इसको ओपन अप करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाली जो टर्म है ये के एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगी। लिख दूं मैं उसको माइनस के एक्स नॉट, जाके आपको आराम से दिखे उस कलर से, एंड प्लस ऑफ के एक्स एंड माइनस, फिर मैं कलर ले आता हूँ वही वाला, that is q into 2k ep upon r naught cube. So you can see this that this equilibrium condition वो यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म पे आपको दिख रही है, और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। और जो आपकी जो बाकी टर्म है दैट इज प्लस ओवर देयर k इंटू q, नहीं k नहीं, 2k पे, एक सेकंड दोबारा लिख देते हैं इसको, ये वाली टर्म को, दिस टर्म बिकम्स प्लस हो गया, माइनस माइनस जो ये टर्म प्लस हो गई है, सो q इंटू 2kp अपॉन आर नॉट क्यूब एंड इंटू 3x अपॉन आर नॉट, ये बच जाएगा। एंड सो ओवरऑल दिस टर्म विल बी माइनस ऑफ
x देखो यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन पिक कर लो, वो मैं एक ही साथ लिखने लगा था, फिर मैंने स्टेप अलग कर दिया। सो दैट बिकम्स एज 2, और एक तो 2 बाहर है, और 3, 6 हो गया। सो 6 kp अपॉन r0 पावर 4 इंटू x आ जाएगा। दैट्स योर नेट रीस्टोरिंग फोर्स। करेक्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व इन करके, मतलब f इक्वल टू माइनस ऑफ के इफेक्टिव इंटू एक्स यूज करके, और फिर टाइम पीरियड को 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इफेक्टिव डाल के टाइम पीरियड इवेल्युएट बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ से। राइट। सो ये जो क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन लगेगा आपको, टाइम लगेगा आपको इसको क्वेश्चन को करने में, मतलब बियॉन्ड द रीच नहीं जाएगा। सो ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चन इज सपोज टू बी दैट इट इज विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन, या ऑप्टिमम टाइम बोलेंगे, इतना टाइम आप लगा लोगे इसके अंदर, मैंने भी लगाया आपके सामने। सो ऑप्टिमम टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्सीड कर सकता है आपको रिडक्शन करते समय, बाइनोमियल लगाते समय और देखते समय इक्विलिब्रियम कंडीशन को, तो थोड़ा सा प्लस हो सकता है, ऑप्टिमम टाइम प्लस थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन ये। और इट शुड बी मॉडरेट टू टफ लेवल का ये क्वेश्चन हम मानेंगे इसको, राइट, बिकॉज ऑफ जस्ट द रिडक्शन। और कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सुना हुआ है SHM, सो मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये मिक्स मैक्स वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट नहीं करते हैं। जो करेंगे उनके लिए वो मॉडरेट है, जो नहीं टच करते हैं और क्वेश्चन को, जैसे 3 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में, तो आप पहले पार्ट को करके छोड़ देते हैं, अगले वाले पार्ट्स नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो क्वेश्चन टफ साउंड करेगा। नेक्स्ट एंड स्टोर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड स्टोर जो क्वेश्चन है, ये फिर से आपको दिखेगा कि ये हमने टच करा हुआ, टच नहीं करा हुआ, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सॉल्व करा हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, नया नया तरीका तो होता है, पर इस तरीके के क्वेश्चन 2 बार पूछे गए, एक बार रुड़की में पूछा गया और एक बार IIT खुद में पूछा गया और एक बार JEE मेन में भी पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चन को, जहां पे ना वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, इस तरीके का हम शॉर्टकट भी डेवलप करके क्वेश्चन को सॉल्व इन कर लेते हैं। उस तरीके का क्वेश्चन है कि आपके पास एक अरेंजमेंट है 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स का, जिनका चार्ज Q और मास M है, और उनको हमने सस्पेंड करा हुआ है ताकि जो 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच का एंगल अल्फा हमें गिवन है। और बाद में हमने क्या करा है, उसी एंगल को मेंटेन करते हुए इस पूरे अरेंजमेंट को एक लिक्विड में शिफ्ट कर दिया है। उस लिक्विड की डेंसिटी जो है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी वो शायद क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने यहाँ पे फीड इन नहीं करी है, तो वो लिक्विड की डेंसिटी हमें गिवन है, शायद पानी है या कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी गिवन थी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है उसका, जो भी लिक्विड है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 21 है, डेंसिटी भी उसकी गिवन है, मैंने फीड इन नहीं करी है, तो आप चेक कर लेना जब पेपर आपके नेट पे आ जाएगा। और ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमने करा हुआ है। वो क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ऐसा था कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी शायद 0.8 है, और जो ये बॉल्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी डेंसिटी शायद 1.6 गिवन होती है, और फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड बताना है। ये वो वाला क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा जब हम इसको मीडियम में डालेंगे। तो ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि फोर्स इन द मीडियम इक्वल टू फोर्स इन द वैक्यूम बाय के, और के सीधा गिवन है, सो दैट इज इक्वल टू फोर्स इन द वैक्यूम। अगर वो पहले F गिवन थी तो F/21 हो जाएगी। ये तो बहुत सौखा क्वेश्चन हो गया जी। और सेकेंड पार्ट है टेंशन निकालना। देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे ना, जो पहले जो बताया, उसमें टेंशन कभी नहीं पूछी गई थी। और आप ध्यान रखना, लेक्चर को रिविजिट कर लेना, झूठ नहीं, लेक्चर को रिविजिट कर लेना, और आप देखना कि मैंने आपको बोला था कि देखो ध्यान नहीं जाता कि टेंशन की वैल्यू बदल गई है, लेकिन कभी ना कभी पूछा जा सकता है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, और इस बार ये पूछ लिया गया है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर यू आर गोइंग टू प्लेस इट इनसाइड दिस मीडियम। आप इस लेक्चर के आर्टिकल को, वीडियो को रिविजिट करके देखना, मैंने ये बात बोली थी। एंड आप खुश होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो मैं भी खुश होता हूँ कि मैंने भी पेपर के अंदर जो बात प्रेडिक्ट करी थी वो होके आ रही है। सो ये अच्छा लगता है कि अब हमारे स्टूडेंट्स उस बात को कर पाएंगे। और साथ में पूछा हुआ है कि जो रो है, जो ये जो ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन का सवाल है, राइट। तो क्योंकि इस क्वेश्चन तरीके का क्वेश्चन आपने टच करा होता है, तो आप क्वेश्चन करते समय आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। और क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन जो है, दैट इज बेसिकली द फोर्स इन द मीडियम इक्वल टू फोर्स इन द वैक्यूम अपॉन के, ये इसका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी एफबीडी बनानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट्स ऑल द क्वेश्चन इज। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना। सो एफबीडी बना के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैकेनिक्स लग रही है सिंपल। tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg, ऐसा भी तो करा हुआ है, जिनको याद है वो कर सकते हैं, नहीं तो पूरा भी कर सकते हैं, अल्फा बाय 2 हो जाएगा।
ये अल्फा बाई 2, टेंशन इसकी टी नॉट रख लेते हैं, ये टी नॉट कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 जो कि mg को बैलेंस इन करेगा, और दूसरा टी नॉट साइन ऑफ अल्फा बाई 2 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम एफ रख लेते हैं उसको बैलेंस आउट करेगा। अब इन दोनों को करके दोनों इक्वेशन लिख के यू विल गेट tan ऑफ अल्फा बाई 2 एज इक्वल टू एफ अपॉन mg। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है, राइट। tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg आप फ्लैश कार्ड्स में फॉर्मूले को बना के रखते ही हैं सारे ना। सो ये tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू एफ अपॉन mg आ गया दोनों इक्वेशन को डिवाइडिंग करके। बाद में क्या हुआ, बाद में देखो अल्फा सेम है, अल्फा सेम है तो मतलब ये फिक्स कंडीशन है कि अल्फा को आपने बदलने नहीं दिया है। तो फिर जो फोर्स आ गई है न्यू, दैट विल बी एफ अपॉन 21, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें यूज हो गया, और ये टेंशन जो है वो चेंज हो जाएगी टी को, कि एंगल अलाउड टू चेंज नहीं है तो टेंशन को ही चेंज होना पड़ेगा। सो ये जो एंगल है ये फिर से अल्फा बाई 2 है, तो ये टी कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। देखो पहली वाली टेंशन यूज ही नहीं हुई क्योंकि दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करा आपने तो टी नॉट कैंसिल हो गई थी, और अब क्वेश्चन वो टी की वैल्यू पूछना आपसे पसंद करेगा, और जो टी कॉस अल्फा बाई 2 है वो फिर से mg के बराबर हो जाएगी, तो वहां से आप टी को इवैल्यूएट इन कर सकते हैं। एंड यहाँ से दैट इज सपोज टू बी टी साइन ऑफ अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा, है ना। और कोई फोर्स नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी ना, दैट इज अप थ्रस्ट, सो दैट्स द फोर्स ऑफ द buoyancy ओवर देयर व्हिच बेसिकली चेंजेस द टेंशन ओवर देयर, जिसकी वजह से टेंशन चेंज हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन आ जाती है दैट बिकम्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दैट इज टी साइन अल्फा बाई 2 दैट बिकम्स इक्वल टू एफ अपॉन 21, और वर्टिकल साइड से दैट विल बी टी cos अल्फा बाई 2 will be equal to mg minus of this buoyant force, so mg minus fp, करेक्ट है। सो टेंशन कैसे आएगी, स्क्वायर एंड ऐड करके आ जाएगी दोनों इक्वेशन को, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, स्क्वायर एंड ऐड करके टेंशन आ जाएगी। बाकी अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो तो आपको फिर से एक बार tan अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। सो tan अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, f अपॉन 21 एंड डिवाइडेड बाय mg माइनस ऑफ buoyant फोर्स ही आ जाएगा। और tan अल्फा बाई 2 पहले से हमारे पास है f अपॉन mg केस नंबर 1 से, और इस वैल्यू को केस नंबर 2 में फिक्स कर देते हैं क्योंकि यही दोनों केस का लिंकअप है। दूसरा लिंकअप आपका f अपॉन 21 है, पहला लिंकअप आपका अल्फा है कि अल्फा को आपने बदला ही नहीं था। सो अगर आप इसको इक्वेट कर लो सो दिस विल बिकम एज इक्वल टू f अपॉन mg ओवर देयर, और ये f और f यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो आई थिंक यू विल गेट दिस एज mg अपॉन mg माइनस ऑफ buoyant फोर्स एज इक्वल टू 1 अपॉन 21, और फिर mg को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आपको फाइंड आउट करना है, एंड अपॉन वी रो जी एंड माइनस वी सिग्मा जी buoyant फोर्स की जगह जो कि लिक्विड की डेंसिटी गिवन होगी, सो दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन 21। ये क्वेश्चन वापस से वहीं पर आ गया जहां से पहले हमने देखा था। तो ये आपका V एंड G यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और फिर अगर आपको सिग्मा पता है तो आप यहाँ से रो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट बेसिकली द क्वेश्चन इज। सिग्मा गिवन होगा डेफिनेटली, वो वैल्यू मेरे को पता नहीं तो मैं वैल्यू डाल के आपको चेक इन करा देता। सो दिस इज व्हाट दिस एंटायर क्वेश्चन इज, जिससे आप रो को भी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर रो मिल जाता है मतलब buoyant फोर्स मिल जाती है, mg पता है, तो आप यहाँ से भी टी निकाल सकते हैं, स्क्वायर एंड ऐड करके निकाल सकते हैं। सो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है, मतलब फाइनली जब आप इसको निकालेंगे। सो हेंस ओपिनियन इज सपोज टू बी वंस अगेन ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन, ऑप्टिमम टाइम पर, क्योंकि आप क्वेश्चन में एंटर कर जाएंगे क्योंकि आपने इस तरीके का क्वेश्चन देखा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस है। सो फॉर दैट आई विल अगेन रीच इट टू मॉडरेट रखूंगा मैं, पर ऑफ कोर्स थोड़ा सा मॉडरेट से प्लस भी रखूंगा, मॉडरेट प्लस भी रखूंगा। रीजन क्योंकि आपको स्टेजेस में क्वेश्चन करना पड़ता है, केस 1 एंड केस 2। सीधा ऐसे नहीं है कि मेंस के क्वेश्चन की तरह है कि सीधा tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू f अपॉन mg से क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आपको सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म करनी पड़ी, और उसके अंदर भी क्वेश्चन ने टेंशन भी पूछी। अगर वो टेंशन नहीं पूछता तो फिर हम उसको मॉडरेट लेवल पे छोड़ देते, पर जो कि उसने उस आइडिया पे हिट इन करा, इट वेंट इनटू द हिटिंग द टेंशन, सो मेरे हिसाब से फिर वहां से वो क्वेश्चन मॉडरेट प्लस कैटेगरी में एंटर कर जाता है, राइट। और एक बिल्कुल एवरेज बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट जो कि सोचता है कि मैं सिर्फ जेडब्ल्यू मेन लेवल करके एडवांस भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ये 100% है। तो ये आप मॉडरेट प्लस लेवल में रखेंगे, मॉडरेट टू टफ लेवल भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने तैयारी करी है उनके लिए मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक इज CAM।
बिल्कुल एडवांस का टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, CAM। और ये इस कैटेगरी के काफी क्वेश्चन हमने करे होते हैं +1 के अंदर, रोटेशन मैकेनिक्स के अंदर काफी ऐसे क्वेश्चन करे होते हैं, SCV में भी काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और हमने काफी क्वेश्चन करे होते हैं। कैसे कि फ्री रॉड होती है, और फ्री रॉड को अगर हम हिट करते हैं तो उसका V निकालो और ओमेगा निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन करे होते हैं जिसके अंदर CLM भी लगानी है और CAM भी लगानी है। और फिर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर रॉड हिंज्ड होती है, पिवटेड होती है, और फिर एक पार्टिकल आके उससे टकराता है तो फिर वो रोटेट करती है इन द प्लेन। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, राइट। तो CLM तो उस क्वेश्चन में नहीं लगती है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ जाती है हिंज से, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाता है। और कहाँ पे? हिंज पे लग जाता है, क्योंकि हिंज पे नेट टॉर्क कितना आता है? 0। That's the question concept over there. There's a torque about the hinge that becomes equal to 0, and therefore you can apply the conservation of angular momentum. ये क्वेश्चन है, that's the category of the question. तो ये फिर से एक बार रोटेशनल मैकेनिक्स में क्वेश्चन एंटर कर जाता है, वहां से क्वेश्चन है। सो प्योरली रोटेशन का क्वेश्चन है। पैरामीटर देख लेते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल m है, स्पीड v है, और उसका जो पिवटेड एंड है, हिंज्ड है, जहाँ पे हिंज दिया हुआ है, वहां से जो डिस्टेंस है वो x है। सेकंड जो रॉड है उसका मास m है, लेंथ l है, और ये पार्टिकल जाके इसको स्ट्राइक कर रहा है। दिस पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग दिस ओवर देयर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर। पूछा हुआ है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। तो आसान क्वेश्चन हो गया है कि इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज पॉइंट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने CM कहाँ पे लगानी है, हिंज पे लगानी है। अगर रॉड फ्री होती है, अगर रॉड फ्री होती है तो फिर आपका CM कहाँ पे लगता है? अबाउट द न्यू सेंटर मास। किस पे लगता है? एट द न्यू सेंटर मास। लेकिन अगर ये हिंज होती है तो फिर CM कहाँ पे लगता है? अबाउट द हिंज पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट आपको टच होना चाहिए कि CM आपने कहाँ लगाना है। दूसरा, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सपोज टू बी द कॉलिजन, कि ये पार्टिकल इसे किस तरीके से कोलाइड करेगा। सो किस तरीके से कोलाइड करेगा वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इट्स अ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको 0 होगा। इसका मतलब ये पार्टिकल जाके चिपक जाएगा। क्या करेगा? चिपक जाएगा। सो फाइनली क्या होने वाला है कि ये जो पार्टिकल है ये जाके यहाँ पे चिपक जाएगा इस जगह पे। ये आपकी हिंज पोजीशन है। सो दो पार्टिकल्स बेसिकली हो गए, एक तो एक्सटेंडेड पार्टिकल और एक पॉइंट पार्टिकल। ये मास m और पूरी रॉड का भी मास कितना है? m। सो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है? CM इनिशियल क्या है? ट्रांसलेशन। सो mv इंटू x हो गया, और फाइनली चिपक जाएगा। तो इसके अबाउट रॉड क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी के लिए कितना होता है? I ओमेगा होता है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन बिहेवियर इज। दैट्स इट। पहले ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम है, और बाद में रिजिड बॉडी का अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंगुलर मोमेंटम है, जो कि I ओमेगा है। सो यहाँ से क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। पहले पार्ट में आपसे ओमेगा पूछी गई है, उसी इंस्टेंट पे कि ओमेगा कितनी होगी वो पूछी गई है। तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, दैट इज mv इंटू एक्स इक्वल टू I ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का आएगा। एक तो रॉड का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रहेगा, वो ml² रहेगा, क्योंकि एंड पर है, एंड एक्सिस पे है। सो दैट इज ml²3। और दूसरा इस पार्टिकल का आएगा, पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? x है। सो दैट इज mx²। ये आपकी कंडीशन आ जाएगी इनटू ओमेगा। सो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा शुड बिकम एज v इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाय, दोनों का मास m है। अगर मैं सही हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉड का मास कैपिटल M गिवन हो, वो आप एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना। मैंने फिलहाल दोनों का मास सेम लेके सॉल्व कर दिया है, आप देख लेना। नहीं तो वो स्मॉल m कैंसिल नहीं होगा, फिर देख लेना। अब ये बात का ध्यान लगा लेना। या मैं लिख ही दूं उसको कि उसको कैपिटल M लिख दो, इसको कैपिटल M रख लो यहाँ पे। तो ये फिर आपका कैपिटल ml²/3 होगा, और कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगी। बस ये हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और दैट्स कैपिटल ml²/3, ये आपके रॉड के लिए हो गया। सो दैट शुड बी mvx अपॉन कैपिटल ml²/3 एंड प्लस ऑफ mx², ये आपका ओमेगा। और ये एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन डन है। और सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है ओमेगा मैक्सिमम कितनी होगी। ओमेगा मैक्सिमम की वो पार्टिकल जो है वो कहाँ हिट करेगा ताकि ओमेगा मैक्सिमम होगी, बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया। तो एक्स वेरिएबल है, तो ओमेगा मैक्सिमम वो भी क्वांटिटी में हो जाएगा क्वेश्चन। ओमेगा मैक्सिमम जब आपको निकालनी है, ये आपका फंडा है निकालने का, तो ओमेगा को आप लिख सकते हो m इंटू वी। एक्स को नीचे ले जाओ, इट शुड बिकम ml²/3 x नीचे आ जाएगा, एंड प्लस ऑफ m इंटू एक्स ही आ जाएगा। सो ये फंक्शन बन गया है, इनवर्स फंक्शन बन गया यहाँ पे नीचे।
तो अगर हमें ओमेगा को मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो एज वी मिनिमाइज इट, दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 3x प्लस ऑफ mx। ये कोई फंक्शन प्लेस कर लेते हैं, y फंक्शन रख देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, विल बी ml स्क्वायर बाई 3, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड प्लस m इंटू 1। और स्टेप्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड इक्वल टू 0। सो हेंस इट बिकम्स कैपिटल ml स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर एज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 1, ये आ जाएगा। सो x स्क्वायर दैट बिकम्स कैपिटल M L स्क्वायर अपॉन 3 स्मॉल m, ये आ जाएगा। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m ही होगा मेरे ख्याल से। मैं रख देता हूँ यहाँ पे, अगर कैपिटल M स्मॉल m के बराबर है तो फिर क्या होगा, नहीं तो x यहाँ से उस रेशियो में मिल जाएगा आपको, है ना। सो x की वैल्यू आ जाएगी, ऑफ कोर्स दैट बिकम्स कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो L बाय रूट 3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू इतनी आ गई है, उसको यहाँ पे फिट इन कर लोगे तो आपको ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू भी आ जाएगी। सो ओमेगा मैक्सिमम शुड बिकम इक्वल टू, अब क्योंकि m मैंने इसके अंदर कैंसिल आउट ही कर दिया सारा, सो न्यूमरेटर में v आ जाएगा, एंड क्योंकि मैंने स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M लिया है, एंड डिनोमिनेटर में L स्क्वायर अपॉन 3x, x की जगह आपका L बाय रूट 3 आ जाएगा, एंड प्लस स्मॉल m इंटू एक्स, सो इंटू L अपॉन रूट 3 आ जाएगा। अब थोड़ा एडजस्ट कर लोगे तो ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू आपकी बहुत आसानी से आपके सामने आ गई है। राइट, सो नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। इसका मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको एक पार्ट में ओमेगा की वैल्यू चेक करनी है, और एक पार्ट में आपने देखा कि ओमेगा मैक्सिमम कितनी आएगी, या थर्ड पार्ट में ये हो सकता है कि एक्स कहाँ पर है जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। राइट, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टाइप है। क्या ओपिनियन है हमारा इस क्वेश्चन के बारे में? इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, सो ऑप्टिमम टाइम क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते ऐसे ही हैं कि ऑप्टिमम टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें पूछ रहे हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा आपने, टेंशन पूछ रहा था, एंगल पूछ रहा था, डेंसिटी पूछ रहा था, तो इट इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। तो ऑप्टिमम टाइम प्लस क्वेश्चन है ये। और लेवल, लेवल आई विल कीप इट टू मीडियम टू टफ लेवल, क्योंकि रोटेशन हमें थोड़ा सा लगता ही है, पर ये क्वेश्चन मीडियम लेवल पे मैं क्यों रखूंगा, मॉडरेट लेवल पे क्यों रखूंगा, फिर से इसलिए रखूंगा क्योंकि एंट्री लेवल बहुत आसान है, क्वेश्चन में एंटर करना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर स्टूडेंट हम क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाए, वैसा नहीं हुआ है, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। रीजन क्योंकि आपको क्वेश्चन की कैटेगरी पता है, तो आप क्वेश्चन में एंटर कर जाते हैं। फिर जिन लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे करना है, वो दिमाग हिट कर जाता है, क्योंकि हर चैप्टर में आपने करा होता है ना कहीं कि मिनिमा निकालो मैक्सिमा निकालो, तो हिट कर जाता है, हिट करने की बात है वहां पे, है ना। तो फिर ये क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल का लग सकता है। ठीक, ठीक है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सर देखो ये वाला पार्ट तो निकाल लिया, सर ओमेगा मैक्सिमम नहीं निकल पाया हमसे, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो एडवांस की तैयारी करते हैं उनको ये बात पता होती है कि हम मैक्सिमम मिनिमम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना नहीं, 100% एक नए क्वेश्चन ऐसा होता ही है, दिख ही गया हमको। नेक्स्ट टॉपिक है फिर से फ्लूइड से, और ये क्वेश्चन किस तरीके से है, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस आइडिया पे बेस्ड है। क्वेश्चन आइडिया पे बेस्ड है, दैट इज वेरिएबल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर बेस्ड है, दैट्स अ वेरिएबल डेंसिटी, उसके ऊपर बेस्ड है कि डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की होती है वेरिएबल होती है और एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। ये बात आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। दैट्स अ वेरिएबल डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, उस आइडिया को इस क्वेश्चन ने हिट ऑन करा है। क्वेश्चन किस तरीके से है कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है कि हमारे पास एक बैलून है, देयर इज अ बैलून ओवर देयर, और उस बैलून का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और उसका मास 480 किलो है टोटल मिला के, जिसके अंदर बहुत सारी बॉल्स है, एन नंबर ऑफ बॉल्स है, बैलून का अपना मास भी होगा, और अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं और सब बॉल्स का मास 1 किलो है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अंदर काफी सारी बॉल्स होंगी इस बैलून के अंदर, जिसकी वजह से उसका एक वेट होगा, एक mg लग रही होगी नीचे की तरफ, तो देयर इज एन mg व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो भाई ये फिर इक्विलिब्रियम में कितना है, तो कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर कि ऊपर बॉइंट फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से ये बैलेंस होगा। सो इनिशियल कंडीशन में बॉइंट फोर्स mg के बराबर है। बॉइंट फोर्स कैसे लिखते हैं, द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इस हाइट पे, वो हाइट आपको 100 मीटर गिवन है, तो 100 मीटर पे ये जो हाइट है वहां पे जितनी डेंसिटी होगी, सो उस डेंसिटी को ρ1 लिख देते हैं, दैट इज सपोज्ड टू बी द डेंसिटी ओवर देयर v ρ1, और क्योंकि थ्रस्ट तो एयर ही लगाएगी ना बाहर वाली, तो एयर की जितनी डेंसिटी होगी ρ1 लिख दिया, इनटू g इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू mg, तो मास कितना है 480,
सो दैट इज 480 इंटू जी। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन आ जाती है यहाँ से, द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कंडीशन पे अगर आप चेक इन करते हैं, द सेकंड कंडीशन ओवर देयर, तो यहाँ पे हाइट है 150 हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने n नंबर ऑफ बॉल्स उसमें से रिमूव कर दी है। क्या कर दी है? रिमूव कर दी। तो हल्का हो जाएगा, तो उसका वेट चेंज हो जाएगा। अब उसका वेट कितना हो जाएगा? दैट इज 480 जी माइनस n बॉल्स 1 kg की हैं तो n इंटू जी, ये इसका नीचे रिड्यूस वेट आ जाएगा। सो सेकेंड क्या है? ये क्वेश्चन वेरिएबल मास का हो गया कि मास इसके अंदर क्या कर रहा है? वेरी इन कर रहा है। ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया। और बॉइंड फोर्स वो भी बदल जाएगी, न्यू बॉइंड फोर्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बदलेगी एयर की हाइट के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? क्योंकि वेट कम हो गया, तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन 150 मीटर पे आ जाती है। आपने ऐसा क्वेश्चन कहां पे टच करा होगा? मैं बताता हूं कि आपने क्वेश्चन ऐसा कहां पे टच करा होता है कि आपके पास एक बैलून होता है जो कि पहले नीचे जा रहा होता है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, और फिर एक क्वेश्चन आता है उसके अंदर से कि उसमें से थोड़ा सा मास बाहर निकाल दो जिससे वो बैलून अब ऊपर जाने लगेगा विद दैट मच एक्सेलरेशन। याद होगा उसका आंसर ऐसे हम निकालते हैं 2ma अपॉन g प्लस है। याद होगा इतना मास निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने करा होता है। तो ये बिल्कुल उस तरीके का क्वेश्चन हो गया, बैलून टाइप क्वेश्चन हो गया ये, है ना। तो अब बॉइंड फोर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या तड़का मारा, यहाँ पे एक्स्ट्रा तड़का मारा है, that's this function which is given to us। ये एक्स्ट्रा तड़का मारा है कि ये डेंसिटी ऑफ द एयर का, ये एक्चुअली में आपका फ्लूइड में क्वेश्चन होना चाहिए था अगर एक्सक्लूसिव किसका होता फॉर द डेंसिटी वेरिएशन, लेकिन साथ में इसके अंदर ये बलून वाला कॉन्सेप्ट भी फिट इन कर दिया है। चलो, सो द बॉइंड फोर्स अब जितनी हो गई है वो कितनी हो गई है? दैट इज v इंटू न्यू डेंसिटी रो2 लिख लेते हैं इंटू जी इज इक्वल टू 480 माइनस n इंटू जी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने का समय आया है। तो पहली इक्वेशन थी v रो1 जी और दूसरी होगी v रो2 जी, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 480 जी एंड डिवाइडेड बाय 480 माइनस n इंटू जी। दोनों इक्वेशन हमने डिवाइड करके g को शहीद करा, v को शहीद करा, रो1 अपॉन रो2 आ गया। अब रो का फंक्शन यहां से आ जाएगा, तो रो1 प्लेस कर लो, रो1 हो जाएगा रो नॉट इंटू ई पावर माइनस h1 अपॉन h नॉट। h1 हमें यहाँ क्वेश्चन में 100 मीटर गिवन है और h नॉट क्वेश्चन में डेटा में 600 गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू ई पावर माइनस h2 अपॉन h नॉट इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 माइनस n। ये आपका बन जाएगा। तो इसमें रो नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। दैट इज 4 ई पावर माइनस h1 अपॉन h नॉट और ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस h2 अपॉन h नॉट ये आ जाएगा एंड इक्वल टू 480 अपॉन 480 माइनस n आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको n फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स आपने बाहर निकाली है ताकि ये न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 480 अपॉन 480 माइनस n फाइंड आउट करना है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लगेगी आपको। और ये e पावर h2 माइनस h1 हो गया, तो h2 150 था, h1 100 है, तो 150 माइनस 100 कितना होता है बता दो मुझे? 150 माइनस 100 50 होता है सर। सो दैट इज 50 एंड अपॉन h नॉट वो है 600। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी e पावर 1/12 ये आ जाएगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व इन करके आई थिंक यू कैन कंप्लीट इन योर क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट, एंड यू नीड टू फाइंड आउट अ वैल्यू फॉर द n ओवर देयर। अब लॉग वॉग में कन्वर्ट करके निकालना चाहते हैं वहां से निकाल लें। ये मैथ्स की एक्सपोनेंशियल e पावर x की सीरीज के थ्रू अगर आप चेक करना चाहते हैं, है ना, हायर टर्म्स को नेगलेक्ट करके, तो वहां से भी शायद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव उस एस्पेक्ट में चला जाएगा यहाँ से, है ना। तो मैं क्योंकि मैथ्स का वो फंडा यूज होगा, सो ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चन विल बी अगेन टफ क्वेश्चन, इट विल गेट इनटू अ टफ कैटेगरी क्वेश्चन, क्योंकि आप कैलकुलेटिव पे जा रहे हैं। और 3 पार्ट्स में क्वेश्चन हुआ, पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम देन फाइनल इक्विलिब्रियम और फिर इस कंडीशन को रोप इन करना। सो ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चन इज इट इज गोइंग टू टेक ऑप्टिमम टाइम, और ऑप्टिमम टाइम प्लस जाएगा, प्लस कैटेगरी में जाएगा, और टू हायर साइड ऑफ टफ पे जाएगा। सो मॉडरेट टू टफ लिखूंगा मैं, लेकिन टफ को सर्कल करूंगा, सो इट विल गेट इनटू अ टफ कैटेगरी क्वेश्चन। इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, फोर्थ कैटेगरी होती है हार्ड नट टू क्रैक कि हमसे हिलता ही नहीं है, वो नहीं जाएगा, थोड़ा टफ लेवल पर जाएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन देखो मैंने आपके साथ डिस्कस आउट कर लिए हैं, काफी सारे क्वेश्चन, और आपने देखा होगा कि जो मैं बोल रहा था वही हो रहा है। Electrodynamics and mechanics are ruling the roast, right? They are ruling the roast, and you need to keep that confidence alive. This is that friend over there
सी IITians बेसिकली है क्या? हु आर IITians? IITians are basically people who apply the things. सर एप्लीकेशन होती किस चीज की है यार? एप्लीकेशन मैकेनिक्स की होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की होती है, जो हम आमतौर पे अपने अराउंड करते हैं, वही है। आपके फोन्स में क्या होता है, लैपटॉप्स में क्या होता है, गायरोस्कोपिक मोशंस, ये सारी चीजें जो है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड व्हाट, मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन वही पूछेंगे ना आईटी वाले, वही पूछेंगे। थोड़ी बहुत मॉडर्न फिजिक्स का टर्क आएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, पर कितनी बेसिक फंडामेंटल थोड़ी बदल देगी। तो क्वेश्चन पूछने का नजरिया, चाहे वो आईआईटी दिल्ली वाले पेपर बना रहे हो या आईआईटी खड़गपुर, ये चेक कर लेना कि किसने इस साल बनाया, किसने अगले साल बनाया, है ना। और थोड़ा आइडिया भी लग जाता है, क्योंकि आप प्रीवियस आईआईटी दिल्ली वालों का देखोगे कि किस तरीके से पेपर आया था, तो आपको हिंट लगेगा। तो प्रेडिक्ट हो जाता है कि देखा इस बार ना मैकेनिक्स थोड़ी ज्यादा है, हर बार ही ज्यादा आती है, क्योंकि सारे सारे के सारे आईटी एंड टेक्निकल माइंड होते हैं, इस वजह से वो ईएम पे और मैकेनिक्स पे हिट करते। बात मान के रखिएगा, आप भी पहुंच जाएंगे। चलो इसको देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन से। तो वहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हिंट देके मैं छोड़ दूंगा, काफी लेट नाइट हो गई है। बाकी क्वेश्चंस जो जब आएंगे, मेरे को जितने क्वेश्चन दिखे मैंने उनको एनालाइज कर दिया, और जो क्वेश्चन मुझे दिखेंगे, क्योंकि इतने रिलीज हुए थे जो मिले थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो जहां जहां से मिले मुझे मिले सोर्सेज से, इंटरनेट से, बच्चों से और दूसरे वेबसाइट से, तो मुझे मैंने ये गैदर कर दिए हैं। इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट देके आपको भी मैं सोने दूंगा, काफी लेट नाइट हो गई, 1 बजने वाले रात के। ओके, सो हमारे पास एक क्यूब गिवन है 1 मीटर का, और वो हमने एक लिक्विड में नीचे प्लेस करा हुआ है, काफी नीचे प्लेस करा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे देख लो यहाँ पे, और डेप्थ डी पे रखा हुआ है। कहाँ पे? डेप्थ डी पे। और बल्क मॉडुलस उस पर्टिकुलर का हमें क्या गिवन है? बी गिवन है, बी इज गिवन एज अ बल्क मॉडुलस फॉर दिस। अब क्या हो रहा है कि ये जो क्यूब है वो श्रिंक करेगा, काय को? व्हाई विल इट श्रिंक? सो आपको पता है सर क्या हो रहा है सर, कि ना ये शायद ऐसी कंडीशन होगी जो आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। याद आएगा सर, हाँ आपने ना फ्लूइड्स में बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चन इस आइडियाज पे आते हैं, सोप बबल के भी, इसके भी, आइसोथर्मल बिहेवियर होता है। तो नीचे जाके क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? अरे देखो ना, ऊपर प्रेशर यहाँ पे पी नॉट है, और यहाँ पे पी नॉट प्लस डी रो जी हो जाएगा प्रेशर नीचे जाके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ पे चला गया? दैट इज सपोज टू बी द प्रेशर वेरिएशन, एक तो विद द डेप्थ, तो सर आता ही है, और दूसरा हमने क्या चेक इन कर लिया कि आइसोथर्मल कंडीशन शायद होंगी, वो हमने चेक इन कर लिया, पर शायद वो यूज नहीं होगा। और तीसरा ऑफ कोर्स बल्क मॉडुलस का जो रिलेशन है वो हमने यूज कर लिया। दैट्स व्हाट इट इज। तो ये तो ऑप्शनल चीजें हो गई, बेसिकली वेरिएशन विद डेप्थ का क्वेश्चन आ गया आपका। सो प्रेशर यहाँ पे पी नॉट प्लस डी रो जी है, इसका मतलब प्रेशर वेरिएशन जो है वो आपका डी रो जी है, वही बल्क मॉडुलस में यूज करना होता है, क्योंकि बल्क मॉडुलस होता क्या है? दैट इज द प्रेशर वेरिएशन अपॉन द चेंज इन द वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी या डी वी अपॉन वी, वो हो जाएगा। सो डेल्टा पी आपका डी रो जी हो गया, दैट इज अ प्रेशर वेरिएशन एज इट रीचेस टू दैट पर्टिकुलर डेप्थ, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, सो डेल्टा वी अपॉन वी ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, श्रिंक होगा वो डेफिनेटली, आप चाहें तो माइनस साइन लगा लीजिए। डेल्टा वी अपॉन वी दैट विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में लिख दिया मैंने, डी रो जी अपॉन बी आ जाएगा। अब वॉल्यूम कितना है? क्यूब है, तो इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, लेंथ इसकी 1 की 1 है, सो वी की वैल्यू को 1 रख देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम जितना है, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 1 ओवर देयर। सो द डेल्टा वी कितना है? दैट बिकम डी रो जी अपॉन बी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, वो आपको इवैल्यूएट करना है, लेंथ में कितना चेंज आएगा। सो आपको डेल्टा एल निकालना है। सो आई थिंक वॉल्यूम आप लिख लोगे, दैट इज इक्वल टू एल क्यूब, और एरर लिख दोगे उसका, तो डेल्टा वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू 3L स्क्वायर, है ना? सही लिख रहा हूँ ना? डेल्टा वी अपॉन वी या 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, सीधा ऐसे आ जाएगा। एरर्स लिख के सीधा डिफरेंशिएट करके देखना वैसे कर लो, एरर लिख के देखना वैसे देख लो। लेंथ 1 है, वॉल्यूम भी 1 है, तो इसका मतलब डेल्टा वी जो है वो सीधा आपका थ्राइस ऑफ डेल्टा एल आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ही खत्म है आपका, डेल्टा वी आपका थ्राइस ऑफ डेल्टा एल आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू डी रो जी अपॉन बी। सो देयरफॉर द वैल्यू फॉर डेल्टा एल दैट बिकम डी रो जी अपॉन 3b, ये है। और ये ऐसा कहीं क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ी लैंग्वेज बदल दी, एल की वैल्यू को क्यूब ले लिया। पहले क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर स्फेरिकल गिवन था, इट वाज स्फेरिकल, मेरी मेमोरी ठीक है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और उसका आंसर भी बिल्कुल सेम तरीके से आया था, डी की जगह रो गिवन था, ना नहीं, डी की जगह कुछ और एच गिवन था शायद, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम, तो आज भी वही क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, देखो इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हुए हैं, तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में डालूंगा, इट इज एन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन।
एंड ओपिनियन इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग ओनली, बहुत आराम से क्वेश्चन खत्म हो गया है. सो इट्स लेस देन ऑप्टिमम टाइम है, सो विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन है. सो दिस इज व्हाट आई कुड ले माय हैंड्स ऑन द क्वेश्चन. और इन क्वेश्चंस को करके मुझे जो समझ में आया है कि फिर से एक बार हमारे क्या कहते हैं, हमारे एनालिसिस की जीत हुई है. हमारे एनालिसिस की जीत होने का मतलब है कि हम इस बात को मान के चलते हैं कि मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स आर गोइंग टू रूल द रूस्ट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग. और दूसरी बात, हम इस बात को मान के चलते हैं कि क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होता है. और यही जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के बीच में लेवल चेकिंग होती है कि आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं रियल वर्ल्ड में चीजों को. क्योंकि जब आप एक गाड़ी बनाते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स. तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके के होते हैं कि आपको टेस्ट करे जाते हैं कि आप क्या आगे बढ़ के कुछ ऐसे रिसर्च वर्क कर भी पाएंगे, क्या आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे. तो आपके ऊपर सरकार, IITs इतना खर्चा करें, तो वो एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि हमें ये एरियाज पूछे जाएंगे और मल्टीपल तरीके के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे. सो ये पेपर को डिस्कस करना आपके सामने ऑब्जेक्टिव यही था. एक तो आपको इम्पार्टिंग द कॉन्फिडेंस कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा इस बात को आपके सामने प्रमाण रखना कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपका जितना बचा हुआ समय है, काफी समय आपके पास अभी, आप फिर से उसी तरीके से क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए. ठीक है ना. सो दैट्स इट.